પૂજાબેન બધાને અત્યારે અનમ્યુટ કરી દો ને 2 મિનિટ માટે. હા શિલ્પાબેન. પ્રણામ ગુરુ. નિકુંજી પ્રણામ. પ્રણામ પ્રણામ. હજી બધા આવ્યા નથી લાગતા. કઈ નહીં, આપણે 5 મિનિટ એમને નોર્મલ વાતો કરીશું. તમારો પરિચય આપી દો. હું શિલ્પા શાહ, જૈન સોશિયલ ગ્રુપની સેક્રેટરી છું. બધાનું વેલકમ કરું છું અને અહીંયા સાધર્મિક ભાઈ બહેનોનું પણ વેલકમ કરું છું. તમારી આજ્ઞાથી અને ગુરુજીના આશીર્વાદથી નવકાર મંત્રથી આપણે આપણો પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓમ નમો અરિહંતાણમ, ઓમ નમો સીતાણમ, ઓમ હરિયાણમ, ઓમ નમો વચાયાણમ, નમો લોએ સવ સાહુણમ, એસો પંચ નમુકારો તવ પણાસણો મંગલાણંચ સૌવેસિમ પડમં હવૈ મંગલમ, પડમં હવૈ મંગલમ. જય જિનેન્દ્ર બધાને. આપણે નિકુંજજીનો પરિચય આપું છું હું. આપણે જે આજે નિકુંજજી ગુરુજીનો આપણે લાભ લઈ રહ્યા છે, એમનું તો આપણે જ્ઞાન લઈએ એમની પાસેથી એટલું ઓછું છે. નિકુંજ મહારાજ, એમનો મીનિંગ થાય છે લોર્ડ કૃષ્ણ. એટલે લોર્ડ કૃષ્ણ આપણને આજે સેશનના અંતમાં એક એવું યંત્ર આપશે કે જે આપણું સુરક્ષા કરશે, આપણે મનને શાંતિ આપશે, તંદુરસ્તી આપશે. આજકાલનું જે આ કોવિડનું સિચ્યુએશન બધાની ચાલે છે ને ટેન્સ્ડ, એમાં આપણને ખૂબ જ હેલ્પરૂપ થશે. કવચ આપણને જે મહારાજ આપશે એ આપણને. અને અમે લોકોએ, મેં અને મીતાબેને સંગીરીના જૂ ગ્રુપમાં આમનું નિકુંજજીનું મેં સેશન સાંભળેલું. ત્યારથી હું એકદમ ઇન્સ્પાયર થઈ ગઈ હતી કે હવે આપણે આપણા જેએસજી ગ્રુપમાં તો આપણે બધાને આ જ્ઞાન પીરસવું જ જોઈએ, કેમ કે આપણે બધા હજી બહુ બધા જ્ઞાનથી અજ્ઞાની છીએ. તો આપણને બેઝિક જ હજી નોલેજ નથી ખબર. તો આજે આપણે એમની પાસેથી ખૂબ જ જ્ઞાન લેશું. અને નિકુંજજી, અમે લોકો જૈન સોશિયલ ગ્રુપમાં અહીંયા આપણે શ્રીમદ રાજચંદ્રની જે થેપલા વિતરણ કેન્દ્ર છે એની સાથે જોડાયેલા છે હમણાંથી 4 દિવસથી. હીરાનંદાની પવઈ સંઘ વાળા 550 કીટ ગરીબોને અમે વેચી છે. હોમિયોપેથિક દવાઓ બધાને આપી છે. અને આવા જ કામ તમારા અને ગુરુજીના આશીર્વાદથી અમે આગળ કરતા રહે એવી જ અમારી સાથે. હું તમને માઇક આપું છું કે તમે હવે ચાલુ કરો. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. પ્રણામ. અને અમારા નલિનભાઈ પ્રેસિડેન્ટ નો તમને ઇન્ટ્રોડક્શન કરાવું છું. નલિનભાઈ દોશી અમારા પ્રેસિડેન્ટ છે. ઓકે. નલિનભાઈ આવી ગયા છે? નલિનભાઈ આવી ગયા છે? એમને અનમ્યુટ કરો ને. અનમ્યુટ જ છે. અનમ્યુટ જ છે. અચ્છા, ઓકે. મીતાબેન ને કરી દો. મીતાબેન દોશી. મીતાબેન દોશી. ઓકે. બધા જાતે જ અનમ્યુટ થઈ શકશે. બધાને ઓપન જ રાખેલું છે. નલિનભાઈ આવી ગયા છે. પ્રણામ નિકુંજભાઈ. ગુરુજી પ્રણામ. પ્રણામ પ્રણામ. કેમ છો? બસ આજે અમને ખૂબ તમારો લાભ મળશે અને બધા એવરીબડી આર વેઇટિંગ ઉત્સુકથી
કે ભાઈ કંઈક સમજ કંઈક આમાં ધર્મ પ્રત્યેમાં પણ કંઈક સમજ પડશે વધારે ક્લિયર સર તો વધારે હું આપણે જોઉં છું જરા આપ ચાલુ કરો તો બધા આપનો લાભ લઈ શકે સાહેબ. ખૂબ સરસ, તમે બધી સેવાઓ આપી રહ્યા છો, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના તમારી. ત્યાં સાહેબ આપણે હમણાં લોકડાઉન ની અંદર ઘણા બધા નાના મોટા પ્રોજેક્ટ અમે કર્યા છે ઘણા બધા અને ખરેખર સફળ થયા છે અને ખરેખર આનંદ છે કે બધા ટીમ વર્ક સાથે કામ કરી રહ્યા છીએ તો વેરી ડુઇંગ વેરી વેલ. ઓકે ઓકે, બધાની ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. અને આપણે ઝૂમ માં ભલે કદાચ ઓછા વત્તા જે પણ જેટલા પણ જોડાશું. હાજી, હા શિલ્પાબેન. ખાસ આજના જે આપણું સેશન છે એની માટે તોરલબેન શાહ અને સ્મિતા શાહનો આભાર માનીએ છીએ. એને હિસાબે આજે આપણે સેશન પામી શક્યા છે. બરાબર છે, બંનેની ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. હજી હમણાં જ અમે સાંજે 2 કલાક સ્વાધ્યાય ઘાટકોપરનો જે આખો પરિવાર છે એ લોકોએ ખૂબ સરસ સાથે મળીને કરેલો છે. આપના બધાના દર્શન કરતા કરતા, ગુજરાતી છે કે આપણે હિન્દી ભાષી છીએ બધા? હિન્દી છે ને આપણે? पंजाबी हिंदीમાં કરવાનું છે. हाँ जी, बहुत ये पूरा कार्यक्रम फेसबुक पे जा रहा है और ऑल ओवर वर्ल्ड से हमारा जो हर रोज 9:30 से 10:30 जो भक्तांबर का कार्यक्रम देखते हैं, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि मलेशिया में रात को 1:30 बज जाते हैं फिर भी वो लोग भक्तांबर सुनते हैं। और आज भी जो हम स्वाध्याय करेंगे, ये पूरा कार्यक्रम जैन अनुष्ठान फेसबुक पे से चल रहा है। अभी पूजा जी, शिल्पा बेन, आप कोई बोलने वाले हैं? ના, હમણાં નહીં, હવે છેલ્લે. छेल्ले अपन पूरा पूजा बता अनम्यूट कर देजो। अभी हम कुछ जो भी घर पे जो अपने घर पे हैं और जिसके पास नोट पेन है वो ले लीजिए। कुछ हम ये चीजें जो हमने लाखों लोगों के ऊपर रिसर्च किया है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। कुछ मैं आप सभी के लिए गिफ्ट भी लेकर के आया हूँ। एक शिल्पा बेन ने अनम्यूट कर दो। ओके, तो आज जितने भी लोग देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उन सभी के लिए मेरी जो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर है, जो हजारों की प्रतियों के अंदर लोगों के पास पहुंची है, तो वो पुस्तक भी इस पूरे कार्यक्रम के बाद मैं शिल्पा जी को भेज दूंगा। तो शिल्पा जी के पास से आपको आप प्राप्त कर सकते हो। मेडिटेशन के लिए हम ज्यादातर पूरे विश्व भर में भक्तांबर की आराधना, भक्तांबर का संखना चला रहे हैं। तो एक अद्भुत भक्तांबर का मेडिटेशन है। आपके घर को हील करना चाहते हो, आपकी बॉडी को आप हील करना चाहते हो और तुरंत हैप्पीनेस चाहते हो, तो भक्तांबर का पूरा जो MP3 है वो आप अपने मोबाइल में बजा सकते हो, टीवी के साथ यूट्यूब के ऊपर से भी बजा सकते हो, जिससे आपके रोम रोम के अंदर भगवान का अस्तित्व का, भगवान की भक्ति का और हेल्थ का। अभी सबसे ज्यादा लोग मानसिक रूप से जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से डिस्टर्ब होने वाले हैं, पर आज जिन्होंने भी ये पूरा भगवान की महिमा को समझा है, मंत्र की महिमा को समझा है, आज का जो पूरा विषय है पावर ऑफ मंत्र, लगभग ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा कि दिन में 2-5 मिनट कोई ना कोई मंत्र का पाठ करता हो। रोज नहीं करता है तो हफ्ते में 15 दिन में कहीं ना कहीं मंदिर भी हम जाते हैं, कभी कभी स्थानक वाले हैं तो ध्यान भी करते हैं। तो उनको सही रूप से कैसे करें और उसकी अनुभूति कैसे करें, और जो मैंने रिसर्च किया है, जो मैंने अभ्यास किया है, जो हजारों लोगों को मैं प्रतिदिन सिखा रहा हूँ, वो बहुत सारी बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। साथ साथ में हमको कौन से भगवान की आराधना करनी चाहिए, जिसकी मान लो कि 1 तारीख को जिसका जन्म हुआ है, शायद सभी लोग ऐसे हैं जिनको अपनी जन्म तारीख पता है, तो हमारी जन्म तारीख के हिसाब से आप कौन सा मंत्र गिनते हो तो तुरंत आपको बेनिफिट भी दिखता है, उसका असर भी दिखता है और अपना कार्य के अंदर गति भी बढ़ती है। तो वो भी सारी चीजें मैं आज आप सभी को लिखाने वाला हूँ। और 3 ऐसी कुछ आदतें हैं जो हमको बहुत डिस्टर्ब करती हैं। बहुत सारी सामायिक करते हैं, बहुत सारा मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, फिर भी स्वभाव के अंदर विचलता आ जाती है, छोटी छोटी घटना में तनाव बढ़ जाता है, मानसिक स्ट्रेस। लॉकडाउन खुलने के बाद आज काफी सारी जगह के ऊपर बहुत सारी बातें आ गई हैं, कल से परसों से बहुत सारा पूरे विश्व में, भारत में परिवर्तन होगा, लेकिन उसके अंदर आप अपने आप को कैसे बचाएंगे, वो उसकी जो बहुत बड़ी बातें हैं, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां जब ओपन हो जाएगा तो सब जगह पे आपको अपने को बचाना पड़ेगा। तो उसके अंदर मंत्र जो है वो आपकी ओरा को कैसे पॉजिटिव करेंगे, दूर दूर तक आप आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है उसको कैसे बढ़ा सकते हो, और मंत्र से कौन सी राशि वाले लोगों को कौन सा मंत्र गिनना चाहिए, वो सारी बातें आज के हम विषय के अंदर जानेंगे, समझेंगे। सबसे पहले बराबर पलाठी लगा करके आप बैठ जाइए, टट्टार
जो बैठे हैं कुर्सी टेबल के ऊपर बैठे हैं वो बराबर नीचे। आज ईश्वर का बहुत बड़ा संकेत है, आदिनाथ भगवान की दिव्य कृपा आपके ऊपर खूब बरसे। आदिनाथ भगवान की असीम कृपा के साथ आप आपकी जीवन यात्रा के अंदर सबसे पहले अच्छा साधक वही है, अच्छा सुखी इंसान वही है कि जिनका स्वास्थ्य अच्छा है। आप एक दवा, दो दवा, तीन दवा ले रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप वीक होते जा रहे हो। और मंत्र की जो आराधना है, मंत्र की जो फ्रीक्वेंसी है, जो आपके अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ाती है, मन की प्रसन्नता को भी बढ़ाती है, और आपका जो गोल आप अचीव करना चाहते हो, तो मुझे धनाढ्य बनना है, बहुत सारे पैसे कमाना है। आज भी लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे ऐसे बिजनेस है कि जिन्होंने करोड़ों रुपया कमाया है। हम जिस ऐप से आज बातचीत कर रहे हैं वो जूम ऐप पूरे विश्व के अंदर व्याप्त हो गई है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोग आज स्कूल में भी देखेंगे। तो आप लॉकडाउन जैसे ही खुले, आपका आने वाला 100 दिन कैसे सुपर डुपर हिट बने, स्वस्थता के अंदर और आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। मंत्र से अपने परिवार को बैठे करना पड़ेगा, हर महिला को अपने पति को सपोर्ट करना पड़ेगा, बच्चे को तैयार करना पड़ेगा। तो इष्ट मंत्र है, मंत्र तो हजारों है, 3.5 करोड़ मंत्र है करीबन। मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब जी हैं, जिनके पास मैंने काफी साल तक अभ्यास किया, 16 किताब लिखी, और गए साल ही इजिप्ट की जो पिरामिड है वहां पर 65 पंडित जियों के साथ में हमने नमस्कार महामंत्र का गान करके वर्ल्ड रिकॉर्ड का निर्माण किया है। वो सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। तो ये सारी चीजों को बांटते हुए, समझते हुए, ओमकार, ह्रीमकार, श्रीमकार, क्लीमकार, थोड़े थोड़े समय के लिए, कोई हमें न पूरा आप परिवर्तन करते हो, छोटी सी साधना करते हो जिसमें आपका काफी सारा बदलाव होता है, काफी सारे चीजों में सुधार होता है। और अचीव गोल, एक मनुष्य सुबह से शाम तक मेहनत करके 25-50 हजार रुपया, मजूर है तो 2-3 हजार रुपया कमा सकता है, लेकिन दिमाग वाले व्यक्ति, पॉजिटिव व्यक्ति खाली 1 घंटे ऑफिस जाते हैं, वो लाखों रुपया कमाते हैं। तो प्रत्येक जैन स्वस्थ बने, प्रत्येक विश्व का व्यक्ति स्वस्थ बने, प्रत्येक व्यक्ति करोड़ाधिपति बने, उसकी साधना है। तो पहले हम 3 बार ओंकार का नाद करेंगे। ये मुद्रा का नाम है ज्ञान मुद्रा। ढीचण के ऊपर ऐसे रखिए बराबर नीचे, आंखें बंद आपकी, गहरी सांस लेकर के ओंकार के ध्यान के साथ में। 21वीं सदी हमारे लिए एक 20वीं सदी न बने, इसकी पूर्व तैयारी पे ये पूरा मंडल ने जबरदस्त कोटि का आयोजन किया है। ज्ञान अभ्यास, अभिनव ज्ञान पद के अंदर लिखा है कि प्रतिदिन जो व्यक्ति 4 लाइन पक्की करता है वो व्यक्ति तीर्थंकर बनता है, साक्षात भगवान बन जाता है। तो आज हम सभी लोग जब एकत्रित हुए साधना करने के लिए, गहरी सांस लेकर के सारी चीजों को समझते हुए, बराबर हमारी राशि के हिसाब से मंत्र आराधना करते हुए, छोटे छोटे मंदिरों को सुधारते हुए, करोड़ रज्जु को बराबर सीधा रखिए, और ध्यान की परिभाषा, एकाग्रता को बढ़ाते हुए, घर में रही हुई सारी चीजों के साथ एंजॉय करते हुए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पैसा बहुत है लेकिन मिठाई नहीं खा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के घर के अंदर इतना खतरनाक बेड बना हुआ है लेकिन उसके ऊपर लोगों को नींद नहीं आ रही है। लोग 6 घंटे 8 घंटे खाली शरीर से सो रहे हैं लेकिन दिमाग इतना भाग रहा है कि सोने। तो उन सभी को आप कंट्रोल कैसे करेंगे? तो आज विश्व के अंदर सकारात्मक खाली विचार ही ऐसी चीज है जिससे आप बच सकते हो, समझ सकते हो और स्वस्थ रह सकते हो। 3 बार जितनी आप गहरी सांस लेकर के अभ्यास करेंगे और लंबा करके हम ओम का पाठ करेंगे, फिर मैं बहुत सारी चीजें आप सभी को लिखाऊंगा। गहरी सांस सभी लोग लीजिए, जितना भी आप लंबा करके सांस ले सकते हो सांस लीजिए, और साथ में मिलकर के हम सभी लोग ओमकार का नाद करेंगे। और जो भी लोग पास पास में बैठे थोड़े थोड़े दूर हो जाए, एक दूसरे को कोई भी व्यक्ति स्पर्श ना करे। दूसरी बार गहरी सांस, तीसरी बार गहरी सांस, जब जब ये आप ध्यान करते हो, साधना करते हो, सबसे पहले युगादिदेव ऐसे आदिनाथ भगवान इस अवसर पीढ़ी के जो महानायक है,
ऐसे आदिनाथ भगवान को ध्यान करते हुए, नमन करते हुए शरीर के अंदर एक आपको मैं मन, शरीर वीक है, बहुत बार बार आप लग जाती है, कार्यों में रुकावट बाधा आती है, मंदिरों के निर्माण के अंदर, शुभ कार्य के निर्माण के अंदर जो मंत्र अत्यंत पावरफुल है, वो मंत्र है, सभी लोग लिखेंगे ओम ह्रीम श्रीम जिराउली पार्श्वनाथाय रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। वो आपको रोज सुबह में, आज मैं सिर्फ 3 लाइन में 3 आदतें बताने वाला हूँ, 3 खाली चीज आप हमें, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा आप करना शुरू कर दीजिए। और आपके राशि के खास करके बहुत सारे विषय के प्रारंभ में मैं सबसे पहले बात आपको बताने चाहता हूँ कि आज ये पूरे ग्रुप ने सुंदर आयोजन जो किया है, खास करके हमारे अध्यक्ष साहब नलिन भाई, शिल्पा बेन की बहुत मेहनत के साथ में ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। लेकिन जब तक आपका अंतिम गोल नहीं होता है, बहुत सारे लोग योगा का भी आपका बहुत अच्छा क्लासेस चलता है हो, लेकिन जैन धर्म ऐसा कहता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है वैसे वैसे मन की जो स्थिति है वो धीरे धीरे डिस्टर्ब हो रही है। तो हमें सबसे पहला ये संकल्प लेना है कि हमको हमारे गुरु नक्की करने हैं। आप हद से ज्यादा जब पढ़ेंगे सुनेंगे तो 2 गुरुओं की जो बातें होगी वो पूरी विरोधाभास होगी, जिसके कारण वो गुरु तो बोल करके चले जाएंगे। आज फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर इतने सारे प्रवचन आ रहे हैं, इतने सारे आप जूम के भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनसे आपको भला नहीं लेकिन नेगेटिविटी आपके अंदर बढ़ने वाली है। कॉमन हम ये 5 गुरु को, ये 2 गुरु को, ये 1 गुरु को ही फॉलो करेंगे। जैसे मेरे गुरु महाराज साहब जी का नाम है चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब जी, आप उनकी युग प्रदान नाम की वेबसाइट है, उसको वहां पर जाकर के देखेंगे तो उसका पूरा जीवन चरित्र, उनकी 350 किताब और उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उन्होंने जो रिसर्च किया था, उसी प्रकार से एक गुरु महाराज साहब जी को आप पहले तो पकड़िए। साधना के अंदर, आध्यात्मिक यात्रा के अंदर आपको आगे बढ़ना है। आप 2 गुरु, 4 गुरु, 10 गुरु को सुनेंगे तो सभी की बात अलग अलग होगी और उससे क्या होगा, और ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और बिना गुरु से आपने जितने भी मंत्र लिए हैं वो सारे मंत्र आपको पहले गुरु भगवान के पास मंत्र दीक्षा लेनी है और उसके पास अभ्यास करना है। यदि मंत्र दीक्षा लिए बगैर आप गिनते हो तो मात्र वो खाली एक रोबोट की तरह पाठ होता है, उसका कोई फल मिलता नहीं है। पावर ऑफ मंत्र का पहला नियम है कि गुरु गम बगैर कोई भी मंत्र गिनने से कोई भी, और इसी के कारण आप देखेंगे कि जो ज्यादा धर्म करता होगा वो ज्यादा दुखी होगा, जो जैसे ही ज्यादा मंत्र करता होगा उसकी मानसिक स्थिति अनबैलेंस हो जाएगी, और जो कम करता होगा भले 10 मिनट करे लेकिन वो एकदम पावरफुल फिट होगा। ये शुद्ध कीजिए, मस्त कीजिए और उसका पूरा ले जाते हो, कभी कभी प्रवचन भी सुनते हो, लेकिन आपका अंतिम लक्ष्य जो है वो खास करके आपको मोक्ष का रखना ही पड़ेगा। कि मेरे पास आज कितना ही बड़ा से बड़ा बंगला है, कितनी भी अच्छे से अच्छी चीजें हैं, कितनी भी अच्छे से अच्छी आप मिठाई भी खा लो, लेकिन दूसरे दिन क्या होने वाला है? पूरा जीवन का मैप, ये जो कोरोना के बाद बहुत सारी वर्ल्ड के बड़े बड़े लोग आज रिसर्च करके बता रहे हैं कि पूरी जीवन व्यवस्था, पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी लोगों की मानसिक व्यवस्था, कुछ ही समय के बाद लाखों की संख्या के अंदर लोग मानसिक रूप से विकलांग हो जाएंगे। और उन सभी में से बचने का सरल मार्ग यदि कोई है तो वो ध्यान है, मेडिटेशन है, गुरु के चरण है, गुरु की भक्ति है, और भीतर के अंदर सारा सुख, सारा आनंद, सारी शक्ति अंदर है। जब से आप बाहर से ढूंढना शुरू करेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर भटकते ही रहोगे, भटकते ही रहोगे, क्योंकि अलग अलग हजारों चीज मिलेगी, हजारों चीज आप देखेंगे और उसके माध्यम से आपका माइंड पूरा विवरिंग हो जाएगा। तो मुझे तीसरे भाव में मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। जब जब भी मंत्र जाप करने के लिए बैठो, पहले ये मुद्रा आपको सभी को करनी है। सभी लोग ऐसे याद करेंगे, जैसे योगा करते हो, जैसे कोई भी प्रकार की चीज करते हो तो उनके कुछ रूल्स होते हैं। आपने अभी तक बहुत जाप किए, बहुत उगम गिने, बहुत जबरदस्त, कल नवकार मंत्र का भी सामूहिक जाप है, तो नवकार मंत्र का भी आप जब जाप करेंगे कल सुबह के अंदर, तो आपको संकल्प करना है। और संकल्प के अंदर सबसे पहला संकल्प आपको करना है कि ये जाप के प्रभाव से मैं स्वस्थ हूं। बहुत सारे लोग उल्टे संकल्प करते हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, मेरी सोसाइटी स्वस्थ हो, मेरा समाज स्वस्थ हो, मेरा देश स्वस्थ हो, और अंतिम के अंदर इस मंत्र के प्रभाव से मेरा विश्व पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। तो संकल्प मुद्रा ऐसे आपको करनी है सभी लोगों को। पहला संकल्प हम करेंगे
कि मुझे इस भाव से, इस मंत्र के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति हो। सेकंड नंबर के अंदर समृद्धि जिसको आप देना चाहते हो, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास कर्जा हो गया है, उन सभी लोगों को भी समृद्ध बनाया जा सकता है। भक्तामृत की 26वीं जो गाथा है, सबसे पहली जो बात आती है कि वो सगरम स्तोत्र के अंदर लिखा है मंगल कल्याण आवासम। घर को स्वर्ग बनाना है जितना ज्यादा आप, तो वो सगरम का ज्यादा से ज्यादा पाठ कीजिए। 5 जो आराधना है, 5 जो गाथा है, सभी प्रकार के उपसर्गों को धारण करने के लिए यदि कोई पावरफुल चीज है तो मंत्र में है नवकार और स्तोत्र में है वो सगरम स्तोत्र। जैसे ये ज्ञान मुद्रा हो गई, ये हो गई संकल्प मुद्रा हो गई, ये अलग अलग मुद्रा का अभ्यास करते करते करते, और जैसे आप करते हो, अभी मैं आपको इंस्टेंट, जैसे बहुत सारे लोगों को बैक पेन है, बहुत सारे लोगों को न्यू रिप्लेसमेंट का प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग नीचे नहीं बैठ रहे हैं, आज देखेंगे तो हमारे सैकड़ों उपाश्रयों के अंदर, सैकड़ों देरासरों के अंदर कुर्सी की संख्या बढ़ रही है, कम हो रही है। इतनी हम सामायिक कर रहे हैं, इतने हमारा साहब जी का प्रवचन सुन रहे हैं, तो हर जैन हमेशा स्वस्थ होना चाहिए। लेकिन आज दिन प्रतिदिन गलत शिक्षा के कारण, गलत भोजन व्यवस्था के कारण हम रोगी होते जा रहे हैं। तो जो भी लोगों को ये एक मुद्रा खास सभी लोग सीख लेंगे, और ये सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको बतानी है। ये बराबर हाथ आपने ऐसे रखे हैं, बराबर पहली अंगुली ऐसे बराबर मोड़ दीजिए, और उसके ऊपर अंगूठा से थोड़ा सा प्रेस करना रहता है। जिस भी लोग नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, जिस लोगों को वायु की तकलीफ है, अभी 5 मिनट 10 मिनट भी आप बैठेंगे, यहाँ की सारी जो नसें हैं आप खुद फील कर पाओगे, वो धीरे 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 खींचने लग जाएगी। और जैसे जैसे आप खींचेगी, आपका पूरा शरीर इतना रोटेट होना चल जाएगा, झुकना आपसे शुरू हो जाएगा पूरी तरह से। आपका जो बैक पेन है, वायु की तकलीफ है, कहीं पर भी करो। आप टीवी देखते देखते भी 5-10 मिनट आप खाली कर लीजिए, उसका प्रभाव आप देखिए। खाना खाने वक्त नॉर्मल चेयर के ऊपर बैठे हैं, चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, वहां पर भी ये मुद्रा कीजिए। इस मुद्रा का नाम है अपान वायु मुद्रा। नमस्कार महामंत्र के कल्प के अंदर लिखा है कि जहां पर भी 84 प्रकार का जो वायु है, कमर की तकलीफ, रीचन की तकलीफ, बैक पेन, पूरा शरीर में घूमता फिरता जो गोला का वायु है, ऐसे 84 प्रकार के वायु को दूर करने का सामर्थ्य सिर्फ एक छोटी सी अपान वायु मुद्रा के अंदर है। और एक चीज समझ लेना कि जो काम दवा नहीं कर सकती है, वो काम दुआ करती है। कि योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और हजारों लोगों ने प्रूव हो चुका है भक्तामर महास्तोत्र की आराधना से आज भी करोड़ों लोगों के रोग दूर हुए हैं। और कल इसीलिए चारे चार पंथ के सारे गुरुदेव, सारे महाराज साहब जी साथ में मिलकर के भव्य शंखनाद कर रहे हैं। आप लोग भी, ये जो आपका ग्रुप थेपला के लिए बहुत सारे लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। इसी के लिए भारत देश में आज बहुत कुछ रूप से बचा हुआ है, और आप सब लोग बचे हैं। बहुत सारी जगह पे जो वातावरण का निर्माण हुआ है, कई सारे लोग पूरी तरह से उजड़ चुके हैं, हजारों लोग रोड के ऊपर है, हजारों लोग ऐसी ऐसी जगह के ऊपर हैं। आपने पूर्व जन्म के अंदर इसी भव में जाने अनजाने में नवकार मंत्र बोला है, गुरु महाराज की सेवा की है, तो 2.5 महीने के विपरीत काल के अंदर पूरा विश्व आज टेंशन में है, फिर भी आप मुस्कान के साथ जी रहे हैं, खा रहे हैं अपने परिवार के साथ में। तो मंत्र 3.5 करोड़ है। कभी भी कोई भी मंत्र का प्रारंभ करने का पहला चरण है कि गुरु भगवान के पास हम मंत्र दीक्षा लेंगे। नमस्कार महामंत्र का अभी विपरीत योग है। बहुत सारे लोग 8 मंत्र गिनते, 10 मंत्र गिनते हैं। शनि वक्री है, बहुत सारे ग्रह भी वक्री हैं। उसके अंदर कोई भी मंत्र का जाप आपको ज्यादा करना नहीं चाहिए। नमस्कार महामंत्र और कुलदेवी माता के मंत्र को छोड़ के यदि आप और भी कोई मंत्र गिनते हैं जिनका बहुत 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 विपरीत फल मिलता है, तो नमस्कार महामंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप कीजिए। जिसको डर लग रहा है, जिसको कोई भी कार्य के अंदर बहुत रुकावटें आ रही हैं, तो हमारे शास्त्र के अंदर नमुत्थुणम नाम का एक सूत्र है, जिसके अंदर बहुत सरल एक मंत्र है जो रोज रात को बोलना चाहिए। ये वर्तमान समय की महामारी आपके अंदर, आपके सोसाइटी के अंदर, आपके शहर में आई है, तो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। नमो जिनाणम जिय भयाणम। 7 प्रकार के भय, जिसको गवर्नमेंट की नोटिस आने वाली है, जिसको कोई भी प्रकार से प्रताड़ना चल रही है, जिसको भी पानी में डर लग रहा है, सिंगापुर आप घूमने के लिए गए हो, जैसे पानी की सवारी कर रहे हो, जल का भय लग रहा है, विमान में उड़ने का भय लग रहा है, कोई भी प्रकार का 7 भय को आप दूर करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पावरफुल मंत्र है नमो जिनाणम जिय भयाणम।
हम पुण्य वृद्धि कारक, बहुत सारे लोग ऐसा जीवन में कोई गलत काम नहीं किया, न्याय नीति से बहुत कम मार्जिन रख के धंधा करते हैं, लोगों का खूब भला करते हैं, लेकिन पुण्य की जो झोली है, ये पूरा जो चक्कर है वो पुण्य का है। और यदि आपको लग रहा है कि मैं किसी का बुरा नहीं करता हूँ, सभी को सपोर्ट कर रहा हूँ, फिर भी मेरा व्यापार क्यों नहीं चल रहा है, उनके लिए आज मैं आपको 2 मंत्र बता रहा हूँ, वो आप बराबर पाठ कीजिए, जिससे यश, कीर्ति, नामना, प्रतिष्ठा और पैसा अढड़क आपके पास आएगा। लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा, भले ही 10 दुकान के अंदर आपके धंधा नहीं होगा, लेकिन आपका जो सामर्थ्य है, आपके बॉडी में से ग्राहक वहां पर ही आते हैं कि आपका मन पवित्र होता है, आपके विचार पवित्र होते हैं, और उसी के कारण जैसे ही आप माल दिखाते हो, वो लेने के लिए इकरार हो जाता है। आप भाव भी कम रखेंगे, लेकिन आप स्ट्रेस के साथ रहेंगे, आप चिंता के साथ रहेंगे, न आप अच्छी कोई स्कीम बना सकते हो, न अच्छा पूरा प्लानिंग कर सकते हो, न आपके नौकरों के साथ आपका अच्छा बर्ताव होगा, और इसी के कारण आपकी जो ओरा है, आपका जो प्रभाव है, वो धीरे धीरे डाउन होता जाएगा, जिसके कारण आपका पूरा परिवार टूट सकता है, जिसके कारण आपका पूरा बिजनेस टूट सकता है। हजारों लोग आत्महत्या करके पूरा जीवन को समापन करते हैं। ये काफी सारी बातें आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जैन धर्म की महिमा को बताने के लिए, पुण्य वृद्धि कारक 2 मंत्र, आपने हजारों मंत्र कर लिए, कोई भी आपको फर्क नहीं पड़ा है, ये 2 मंत्र आप रोज गिनिए। जावंत केवी साहू, लिख लीजिए सभी लोग। दुनिया में जितने भी मुनिवर हैं, पुण्य को आपको बढ़ाना है। नमो और यंत्राण का पहले 2 अक्षर है नमो। जब भी नम झुकना, आप आप 1 लोगों को झुकेंगे, 100 लोग आपको झुकेंगे। आप 1 लोगों की बात सुनेंगे, 1000 लोग आपकी बात सुनना स्टार्ट कर देंगे। विश्व में जितने भी साधु साध्वी जी भगवान थे, उन सभी को मैं भाव से प्रणाम करता हूँ। रोज सुबह में ऐसा खाली आप बोल के जाइए, रास्ते में जितने भी लोग दिखेंगे वो सब लोग आपको सलाम मारेंगे, क्योंकि आपने शुरुआत किससे की है? नमन से, वंदन से, रिस्पेक्ट से। आप दूसरे को जो देते हो वो मल्टीप्लाई होकर के आपके पास आना स्टार्ट हो जाता है। और उससे भी प्रभावशाली प्रयोग जावंती चेयाईम। दुनिया में जितने भी देरासर हैं, इंडिया में है, विदेश में है, कहीं पर भी है, उनके अंदर जितने भी जिन प्रतिमा है, वो सभी जिन प्रतिमा को मैं भाव से बैठे बैठे प्रणाम कर रहा हूँ। कलापुरुषरी महाराज का दृष्टांत मैं बहुत बार बताता था कि कलापुरुषरी महाराज साहब कच्छ के अंदर ऐसे को जबरदस्त विरल विभूति थे, वो जिसको भी वासस के भी डालते थे तो सबको बोलते कि 1 नौकारवाड़ी गिन तो मैं आपको वासस के, कोई पैसा की बात नहीं, खाली नौकारवाड़ी का संकल्प। उन्होंने भगवान के प्रति इतना प्रेम किया भगवान को, तो पूरा विश्व उनको प्रेम करने लग गया। जो आप दूसरे को देते हैं वही मल्टीप्लाई होकर के आपके जीवन के अंदर आ रहा है। पानी को अमृत बनाइए, भोजन को अमृत बनाइए, प्रसाद बनाइए। जो इष्ट मंत्र है उनको सरल मात्रा में गिनिए। आज आपने 10 बजे माला गिनी है तो कल 10 बजे ही गिनना है। कल 10 बजे आप छोड़ देते हो तो फिर शाम को नहीं बैठ जाना है। तो वो जो एक पूरी फ्रीक्वेंसी तैयार होती है, मंत्र की एनर्जी, और इसीलिए कभी कभी आप सुबह में बैठ गए, कभी शाम को बैठ गए, कभी सुबह में बैठ गए, पूरी जो आपकी साइकिल है अप डाउन अप डाउन अप डाउन। कभी छूट भी जाए तो भी छोड़ देना, लेकिन एक टाइम, एक दिशा, एक मंत्र, जो भी मंत्र गिनते उसका भी पूरा चरण, कि नमस्कार महामंत्र है तो उसको पहले 1 लाख नौकार मंत्र जो भी मनुष्य गिनता है वो व्यक्ति तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करता है। राजेश्वरी महाराज साहब जी कहते थे कि जिसके पास अढड़क धन है, जिसके पास सारी सामग्री है, खाली नौकार मंत्र की साधना आप करो। 1 चांदी का चावल लेना है, 1 नौकार मंत्र गिना, आपके घर में जो भी फोटो है, जो भी प्रतिमा है उसके ऊपर चढ़ा दिया। इस प्रकार से आप 1 लाख नौकार गिनते हो। नियमा आप भी महावीर स्वामी भगवान बन सकते हो, आप भी अगली 24वां पार्श्वनाथ भगवान बन सकते हो। और प्रचंड विस्फोटक, आज अमेजोन का जो मालिक है, रिलायंस कंपनी का मालिक है, वो भी ऑफिस में जाते हैं नहीं जाते कुछ भी पता नहीं, फिर भी अढड़क करोड़ों रुपया आप उनके पास आता है। तो वो सामर्थ्य आपके अंदर प्रकट हो, वो चीजें सब आप भले उपास में बैठे, आप भले आपके फैमिली में है, लेकिन मल्टीप्लाई करके पैसा आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जावंती चाहिए, जावंत के उसाऊ, ऐसी अलग अलग प्रकार के मंत्र जाप करते 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 करते, खास करके आज मैं अगत्य की आपको बात बताना चाहता हूँ कि जिनकी भी जन्म तारीख, खास करके सभी लोग बराबर अपने लिए भी लिख लेना, अपने सारे रिश्तेदारों के लिए भी लिख लेना। जिनकी जन्म तारीख 1 है, जिनकी जन्म तारीख 10 है, जिनकी जन्म तारीख 19 है और जिनकी जन्म तारीख 28 है, मूलांक जिसको बोलते हैं,
बहुत सारे लोगों के फेसबुक के माध्यम से भी क्वेश्चन आ रहा है कि भाई हमें कौन से मंत्र गिनने चाहिए। बहुत सारे लोगों के बड़े बड़े लिस्ट होते हैं कि भाई मैं पार्श्वनाथ भगवान का गिनता हूँ, वह सगरम करता हूँ, 5 बजे उठ करके करता हूँ, लेकिन रियल में आपको कौन से मंत्र गिनने चाहिए और वही मंत्र आप गिनते हो तो तत्क्षण, जैसे अब मेडिकल में हजारों दवाइयां मिलती हैं, लेकिन डॉक्टर के पास लिखा करके आप 2 दवा लेते हो, वो तुरंत ठीक हो जाते हो। उसी प्रकार से आपकी जन्म तारीख से भी श्राद्ध विधि ग्रंथ के अंदर, धर्म बिंदु ग्रंथ के अंदर ऐसे अनेक आचार्य भगवंतों ने बहुत सारे मंत्रों के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर, घर में कैसे मंदिर होने चाहिए, बहुत सारे लोगों ने इतनी सारी प्रतिमा रख दी है और हम पूरा एक दिया भी उनको कर नहीं पा रहे हैं। तो मंदिर कैसा होना चाहिए, कौन सी दिशा में प्रॉपर आपको स्नान करना चाहिए, काले कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए, उसके लिए सरल रूप से रात को कौन सी दिशा में सोना चाहिए, क्यों नॉर्थ दिशा में नहीं सोना चाहिए, और नॉर्थ दिशा में सोने वाले व्यक्ति लगातार यदि सोता है, नॉर्थ की तरफ सर रखते हैं, तो उनको पैरालिसिस होने का अटैक आ जाता है, सोचने समझने की स्थिति जो है वो खलास हो जाती है। तो जिसकी भी जन्म तारीख है 1, 10, 19 और 28, उन सभी लोगों को अपने भाग्य को प्रबल बनाना है, संकल्प सिद्धि करना है। आप चाहते हो कोई मुझे अगले साल में 10 करोड़ रुपया कमाना है, नया बिल्डिंग करना है, जो भी बिल्डिंग लाइन के अंदर है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, सूर्य संबंधी जिसको उपासना करनी है, तेजस्विता बढ़ानी है, पेट के सारे रोगों को भगाना है, वो सभी लोगों को ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री पद्म प्रभ स्वामिने नमः, पावर ऑफ मंत्र, ये सभी लोग आप 21 दिन तक आराधना कीजिए और उनको 3 के गुणांक में आपको करना है। कोई भी मंत्र जब भी आप गिनने के लिए बैठते हो तो 3, 6, 9, 12, 108, खास करके जिनकी भी 2 तारीख जन्म तारीख है, सभी लोग बराबर लिखेंगे, समझेंगे, और आपके सारे दोस्त जो भी रिश्तेदार हैं वो और भी मंत्र लंबे समय से गिन रहे हैं और उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा और आपको मुझे रिजल्ट मिले ऐसा मुझे कुछ दो। आज मैं आपको मंत्र की जो हीलिंग प्रोसेस है वो भी सिखाऊंगा। यदि आप कोई मंत्र लंबे समय से गिन रहे हो और उनकी जो हीलिंग दूसरे को आप देना चाहते हो तो कैसे देंगे, तो 2 तारीख को जिसका जन्म हुआ है, 11 तारीख को जिसका जन्म हुआ है, 20 तारीख को जिसका जन्म हुआ है और जिसका जन्म 29, वो सभी लोगों को, खास करके जिसका मूलांक 2 है, उन सभी लोगों को चंद्र की उपासना करनी चाहिए। चंद्र प्रभ स्वामी भगवान, सफेद चीज आप साथ में रखिए, सफेद रुमाल रखिए, आप सोते हो तो तकिए के ऊपर सफेद रुमाल, सफेद कलर का तकिया रखिए, जिसको नींद नहीं आती है। बहुत सारे आज हजारों लोग ऐसे हैं कि रात को 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक देख के बहुत सारी वेब सीरीज देख रहे हैं। हद से ज्यादा जो आप चित्र देख रहे हैं, जिसके माध्यम से आने वाले समय में लाखों मानसिक रोगी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति, हद से ज्यादा आप जब मोबाइल चलाते हो तो आपकी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से खलास हो जाती है। हमारे गुरुदेव को पढ़ाने वाले प्रभुदास बेचरदास पारेख बता रहे थे कि आज ज्यादातर जो बच्चे अनपढ़ होने वाले, छोटी उम्र में चश्मे आने वाले हैं, और उसमें भी जो ऑनलाइन शिक्षण आ गया है, वो ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से कितने सारे बच्चों की आंख, सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से खलास हो जाने वाली है। पूरी तरह से कमजोर आज पूरा विश्व, भोजन के अंदर पूरी डिस्टर्ब चल रहा है, मानसिक रूप से पूरी तरह से डिस्टर्ब चल रहा है, और उसी में भी 3 बात आज मैं आपको पूरी, सब बहुत ज्ञानी है, जितने भी लोग आज जुड़े हैं हजारों की संख्या के अंदर फेसबुक से और ये जूम में से, सभी लोगों ने मेरे जैसे कई लोगों का प्रवचन सुना है, लेकिन आप 3 चीज आप मुझे दीजिए खाली, आपके जीवन के अंदर सकारात्मक इतना जबरदस्त बदलाव होगा। आप परिवार के एक एक व्यक्ति की वैल्यू समझेंगे, एक एक व्यक्ति को इतना प्यार करेंगे। भगवान से भी बड़ा यदि कोई चीज है तो आपका परिवार है। चंद्रशेखर विजय जी महाराज जी ने लिखा है, कुटुंब मेला, जो व्यक्ति साधर्मिक की भक्ति नहीं कर सकता है, जो व्यक्ति अपनी पत्नी को नहीं समझ सकता है, जो व्यक्ति अपने बेटे को समझने में देरी लगा देता है, समझ लेना उनसे भगवान सीधी रूप से नाराज है। परिवार जब तक मजबूत रहेगा, परिवार के अंदर प्रेम के संबंध मजबूत रहेंगे, गुरु के साथ संबंध आपके मजबूत रहेंगे, और उसके बाद आप जो धर्म करेंगे उसका आनंद अनेरा हो जाएगा। तो हर परिवार स्वस्थ बने, हर परिवार मस्त बने, हर परिवार के अंदर प्रेम बढ़े। पति कुछ भी बोले, पत्नी सुनने के लिए तैयार हो जाए, स्वीकार कर ले। पति कुछ भी बोले, दोनों के बीच में आनंद प्रमोद बढ़े। और वो कैसे हो सकता है कि आपने सही मंत्र गिने हैं। तो आपको 4 रोटी खाने की कैपेसिटी हो और आप 40 खा लो तो क्या होगा? आपको डॉक्टर ने बोला है कि शक्कर नहीं खाना है,
आपके जो विपरीत मंत्र है, कारक मंत्र होते, मारक मंत्र होते, जो मंत्र आपको नहीं गिनना है वो बर्स, मुझे आज गुस्सा नहीं करना है, और छोटी सी घटना हो जाती है और आप विस्फोट फट जाते हो। और इसीलिए भगवान के पास रोज मांगो, क्योंकि भगवान की मूर्ति कभी फटने वाली नहीं है। वो बोलेंगे नहीं कि प्रकाश भाई क्यों गलती कर रहे हो, लेकिन गुरु आपने बनाया है तो गुरु बोलेंगे भाई ये तुझे शोभा नहीं, तू किसका बेटा है, तू किसके लिए यहाँ पर आया, तुझे और कितने सारे काम करने हैं, जाग जाओ, समझ जाओ, सुधर जाओ, स्थिर हो जाओ। और सभी को ज्ञान है, लेकिन कोई जगाने वाला चाहिए। रोज सुबह के अंदर जैसे ही आप उठो, पहला काम हाथ दोनों ऐसे करते हुए भगवान की शुक्रिया अदा करो कि भगवान आज तूने मुझे एक नया जन्म दिया। पूरे वर्ष में, पूरे विश्व के अंदर करोड़ों लोग, लाखों लोग सुबह में आंख खोलते नहीं है। आपको आंख मिली है, नाक मिला है, कान मिला है, शरीर के सारे अंग मिले हैं, वो सबसे बड़ी भगवान की शुक्रिया है। कितने लोग हम करते हैं, कितने लोग हम करते हैं? चिकना मैंने करते हैं, खूब अनुमोदन, शिल्पा जी भी करते हैं, नीलम जी भी करते हैं, बहुत बहुत भावना जी भी। सबसे पहला काम, और तपस्या आप नहीं करोगे, 1 करोड़ रुपए का दान नहीं दोगे, कोई बात नहीं, हर पल उत्सव बने, प्रति क्षण आनंद, प्रति क्षण। जिस दिन आपके चेहरे के ऊपर से मुस्कान चली गई ना, उस दिन आपका मानसिक डेथ हो गया है। जिसके पास मुस्कान नहीं है, जिसके पास अच्छे शब्द नहीं है, जिसके पास खुशी नहीं है, भले वो करोड़ रुपए के बंगले में रहता हो, फ्लैट में रहता हो, लेकिन वो व्यक्ति अंदर से पूरी तरह से खाली है। प्रेमाळ स्वभाव, और प्रेमाळ स्वभाव आपको मंत्र साधना से, मेडिटेशन से, गुरु के संयोग से, अच्छे कल्याण मित्र से, जिसके पास अच्छे दोस्त भी नहीं है ना, वो भी व्यक्ति गरीब है। और धर्म सबसे पहले आपको कल्याण मित्र देता है। आपको खींच के कोई भी जगह भटक भी जाओ तो हाथ पकड़ के लेके आए। तो आज हम पावर ऑफ मंत्र के अंदर सीख रहे हैं। चंद्र प्रभा स्वामी जी भगवान के मन की जो विशालता है, मैं कितने लोगों को प्रेम कर सकता हूँ, कितने लोगों को आप प्रेम कर सकते हो? आपके भाई ने आपका बहुत बुरा किया हो, क्या आप आपके भाई को प्रेम कर सकते हो? हमारी हृदय की जो निष्ठुरता है आज इतनी पूरी तरह से खलास हो गई, और इसी के कारण हमारे बाईपास बढ़ रहे हैं। पूरे शहर को आप प्रेम कर सकते हो, टीवी के ऊपर इतने सारे लोगों की रोज डेट देखते हैं कि हजारों लोग मर गए हैं, कभी एक बार भी होता है अरे यार भगवान क्या हो गया? मैं उनके लिए मैं 108 नवकार मंत्र गिनता हूं, उन सभी के मंगल। हे परमात्मा, जो भी लोग गुजर गए हैं उन सभी लोगों को सद्गति प्रदान करना। 2.5 महीने में हमने कितनी बार ये वाक्य बोला है। जब आप दूसरे के लिए नहीं बोल सकते हो तो समझ लेना कि हमारे लिए कौन बोलेगा। मात्र और मात्र प्रार्थना करने की, भगवान जो भी लोग गुजर गए हैं उन सभी को आप सद्गति प्रदान करना। जो भी लोग हॉस्पिटल के अंदर हैं उन सभी लोगों को स्वस्थता प्रदान करना। रोज सुबह में जैसे ही आप उठते हो, आंख बंद करके विजुअलाइजेशन करो मेरे घर के पास ये हॉस्पिटल है। धर्म क्या है, आराधना क्या है, उनके अंदर रहने वाले सभी जो दर्दी हैं, नमस्कार महामंत्र के प्रभाव से, वो सकर्म के जो भी आपका इष्ट मंत्र है उनके प्रभाव से सभी दर्दी स्वस्थ हो रहे हैं, सभी दर्दी मस्त हो रहे हैं, सभी दर्दी जल्दी जल्दी वहां से छूटे हो रहे हैं, अपने माता पिता के साथ अपने बेटे के पास जा रहे हैं और उनकी रूटीन लाइफ जी रहे हैं। किसी को कुछ भी दे बगैर, सिर्फ और सिर्फ इतना आप करते हो, आपके जीवन में कभी भी रोग और हॉस्पिटल दस्तक नहीं देगा, क्योंकि रोज आपने किसी के स्वस्थ होने की दुआ की। सबसे पहले हम रोज परमात्मा को प्रार्थना करेंगे कि भाई आज मेरी आंख जो खुल गई है उसके लिए मैं बहुत 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 आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सिर्फ सरल भाषा के अंदर ये बातें, विनंती, प्रार्थना हमें करनी है। तो जिन जिन लोगों का खास करके 3 तारीख को जन्म है, जिनका भी 12 तारीख को जन्म है, 21 तारीख को जन्म है, 30 तारीख को जन्म है, जो व्यक्ति यश, कीर्ति, नामना, प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, बड़े बड़े जगह के ऊपर खुद खड़े रह करके अच्छे कार्य करना चाहता, दुर्जनों की सक्रियता और सज्जनों की निष्क्रियता, जिनके पास सत्ता है, अच्छे लोग यदि सत्ता में आएंगे तो अच्छा काम बहुत जल्दी होगा। आज हम सपना खास करके शिल्पा जी की अनुमोदना क्यों करेंगे कि आज वो सत्ता में थी और उन्होंने तुरंत डिसीजन ले लिया कि भाई नहीं, हमको सबको साथ में मिलकर के स्वाध्याय करना है। तो सभी लोग जितने भी सज्जन हैं आप सक्रिय हो जाइए, कोई भी मंडल के ग्रुप के लीडर बन जाइए। और लीडर आप तभी बन सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा गुरु ग्रह की, आदिनाथ भगवान का ध्यान करते हो। ओम ह्रीम नमः
ओम ह्रीम श्रीम अर्हम श्री आदिनाथाय नमः। जिनके अब मूलांक 3 है, उन सभी लोगों को गुरु ग्रह की उपासना करनी है, आदिनाथ भगवान की उपासना करनी है, और उनके लिए गुरुवार जो है वो बहुत लकी है। कोई भी स्टार्टिंग काम करना चाहते, गाड़ी लेना चाहते, नई कंपनी खोलना चाहते हो, गुरुवार के दिन आप करेंगे, सड़सड़ाहट आपकी यात्रा आगे बढ़ने वाली है। बहुत शांति से सारी चीजों को लिखिए, और वो सारी चीजें आप सभी को पूरा पीडीएफ के अंदर खास करके शिल्पा जी भेज देंगे। 4, 3, 22 और 31 पावर ऑफ मंत्र के अंदर हम समझेंगे कि ये तारीख में जो भी व्यक्ति जन्मे हैं उन सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहु ग्रह से प्रभावित होते हैं, और नेमिनाथ भगवान की आराधना करनी चाहिए। नेमिनाथ भगवान, ओम ह्रीम श्रीम अर्हम श्री नेमिनाथाय नमः। गिरनार की आप भाव यात्रा करते हो, इस विश्व के अंदर सबसे प्राचीन यदि कोई प्रतिमा है तो जय जय गर्वो गिरनार, ऐसे नेमिनाथ भगवान को नमन करते हुए भाव यात्रा का पाठ करते हो, संकल्प करते हो। किसी ने आपको फंसा दिया है, कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं, पार्टनरशिप में डिस्टर्बेंस बहुत बढ़ गया है, तो वो सभी के अंदर नेमिनाथ भगवान का ध्यान, नेमिनाथ भगवान की आराधना आपको बहुत 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 सपोर्ट करती है। काम सारे आपको ही करना है, बातें सारी आपको ही करनी है, लेकिन एक आइडिया ऐसा आपके अंदर आ जाएगा, आप सोचते रहे कि ये बात तो मुझे ख्याल में ही नहीं आई, तो जो बात के ख्याल, वो सारी शक्ति जैसे ही हम जन्म लेते हैं, जन्म से ही अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी के अंदर है ही ये सारी मेडिटेशन, ध्यान, मंत्र जाप उसको जागृत करते हैं। जिसका भी जन्म 5 तारीख को हुआ है, जिसका भी जन्म 14 तारीख को हुआ है, जिसका भी जन्म 23 तारीख को हुआ है, वो सभी लोगों को खास करके बुध ग्रह की उपासना करनी चाहिए। ये धरती के ऊपर 3 तीर्थंकर भगवान के अधिष्ठायक देव बहुत जागृत है। पूनम में बेस्ता महीना, कभी भी, अभी 2.5 महीने से सारे मंदिर बंद हैं, लेकिन आप कभी भी शंखेश्वर जाओ तो जहां पर हजारों की, सैकड़ों की भीड़ रहती है, जिनके अधिष्ठायक देव जबरदस्त जागृत है। सेकंड नंबर के अंदर बलसाना तीर्थ है, जहां के विमलनाथ भगवान, हजारों ऐसे व्यक्ति हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में सैकड़ों लोग होंगे कि वाणी के अंदर मधुरता आपको लानी है। जैसे आप बोलना करो, लोग सुनते ही जाए, सुनते ही जाए, सुनते ही जाए। जिनको मार्केटिंग के अंदर आगे बढ़ना है, जिनको अच्छी पॉलिसी बनाना है, जिनको लोगों को कन्विंस अच्छा करना है, ग्रुप का मैनेजमेंट और मजबूत बनाना है, वो सभी लोग ओम ह्रीम नमो उवज्जायणम, या तो विमलनाथ भगवान का जो मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम अर्हम श्री विमलनाथाय नमः, और उन सभी लोगों को बुधवार के दिन कोई भी शुभत्व कार्य करने हैं। उज्जैन के अंदर हजारों हमारे हरिभद्र सुरीश्वर जी महाराजा, वो सकरम स्तोत्र के रचयिता भद्रबाहु स्वामी जी भगवान, जैन ज्योतिष शास्त्र के अंदर छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी आराधना जो आपको तुरंत लाभदायी है, और उसके अंदर 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख, उसी के अंदर जिनका जन्म हुआ है वो सभी लोगों को शुक्र ग्रह की उपासना, जिसको भी अच्छी गाड़ी लाना है, घर के अंदर लग्जरियस आइटमों को और बढ़ाना है, सुंदरता को और निखारना है, वो सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा, आप सभी लोगों को सुविधिनाथ भगवान, रियल डायमंड, शुक्र ग्रह की उपासना आपके जीवन के अंदर वैभव को बढ़ाती है। और खास करके शुक्रवार माँ का दिन प्यारा, पद्मावती माता की उपासना, कुलदेवी माँ की उपासना के लिए बहुत बहुत, कुलदेवी माँ की उपासना के लिए बहुत 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 लाभदायी है। खास करके 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख के दिन जिनका भी जन्म हुआ है वो सभी लोग केतु ग्रह की उपासना करें। केतु ग्रह की जो उपासना है, जिसके अंदर अधिष्ठायक मल्लीनाथ भगवान, मोहिनी तीर्थ के अंदर, शंखेश्वर तीर्थ का तो महिमा अभी अभी बढ़ा है, लेकिन कुछ समय पहले शंखेश्वर तीर्थ में जो दिए जलते थे शाम को संध्या के समय, वो दिए के लिए घी भी मोहिनी महातीर्थ से आता था।
एक समय था कि भोयणी के अंदर जो भी प्राचीन लोग हो गए उनको पता होगा कि हजारों की संख्या के अंदर लोग वहां जाते थे। तो मल्लीनाथ भगवान, और जब कभी भी आपको ऑपरेशन कराने का अवसर आए उसके पहले खास करके मल्लीनाथ भगवान के संकल्प के नाम से घी का दान आपको ऑपरेशन के अंदर बहुत जल्दी रूज लाता है और सरल रूप से आप स्वस्थता को प्राप्त करते हैं। 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख जिनका मूलांक 8 है, उन सभी के लिए अद्भुत आराधना आपको करनी है। शनि देव, अभी शनि की पनौती चल रही है, शनि की वक्री चल रही है। जैसे ये आप सुनते हो तो मगज फट जाता है। कोई भी ग्रह किसी को परेशान करता नहीं है। पहला वाक्य आप लिख लीजिए, आपका आडोसी पाडोसी आपको परेशान करता नहीं है। हमने जो बोया है वो ही हमारे साथ रिटर्न आने वाला। तो ऐसा कभी भी आप भ्रमित होने की कोशिश ना करें कि मेरे ये खराब ग्रह चल रहे हैं, मेरे ये चल रहे हैं, इधर उधर भटके नहीं। मात्र शुद्ध भाव से नीतिमत्ता के साथ में, व्यवहार के साथ में आप बिजनेस कीजिए, डील कीजिए, लोगों के साथ बात कीजिए। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं कि जीवन के अंदर ऐसे लाखों लोग हैं जो 15 साल की उम्र है, 20 साल की उम्र है और कोट्याधिपति करोड़ों रुपए के मालिक है, और आप भी बन सकते हो। तो फिर भी कभी कभी हमारा मन डाइवर्ट हो जाए, कभी शनि वक्री है, मेरी राशि में पनौती चल रही है, तो उन सभी लोगों के लिए, और 8, 17 और 26 तारीख को जिनका जन्म हुआ है वो सभी लोगों को मुनि सूरत स्वामी भगवान की जो आराधना है, जिसको भी लंबे समय से सारे काम रुके हुए हैं, तो ऑफिस बन गई है, सारा बिजनेस ओपन हो गया है, फिर भी काम चालू नहीं हो रहा है, ऐसी सारी परिस्थिति के अंदर आप सभी लोग खास करके मुनीश्वर स्वामी जी भगवान की आप आराधना करते हो, साधना करते हो। जिनको भी तपस्या करनी है, अभी 1-1.5 महीने के बाद चातुर्मास चालू हो जाएगा। ये हर नाम के पीछे एक रहस्य है। जो वर्धमान जैसे भगवान का नाम पड़ा है तो वो उनकी जो माता की कुक्षी में आया और सारी चीजों की वृद्धि होना चालू हो गई, बढ़ने लग गया, पैसा, धन, दौलत, ऐश्वर्य, इसके लिए उनका नाम वर्धमान हो गया। मुनीश्वर स्वामी जी भगवान की मम्मी जब प्रेग्नेंट थी तब उनके मन के अंदर विचार, जो माँ भी बनती है, बुद्धि सागर महाराज जी कहते थे कि एक माता जब बच्चे को जन्म देती है तो सबसे ज्यादा खुशी होती है। महुड़ी तीर्थ के रचयिता बुद्धि सागर सूरी महाराज को क्यों खुशी होती है, तो बोले एक बच्चा जब जैन शासन में आता है 25-50 साल जैन शासन और आगे चला जाता है। इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी यदि कोई भेंट देने वाला इंसान है तो वो माँ है। और वो माँ को नमन करते हुए, माँ को वंदन करते हुए, मुनि सूरत स्वामी जी भगवान की माता भी जब प्रेग्नेंट थी तो उनके मन के अंदर बहुत सारे विचार आए कि मैं बहुत सारे मुनियों को दान दूं। गर्भ संस्करण का एक जबरदस्त कोटि की आराधना, राजहंस सूरीश्वर जी महाराज बंबई वाले हो तो आप सभी को पता होगा, हजारों लोगों को उत्तम कोटि को संतान तैयार करने का एक जबरदस्त कोटि का मिशन चल रहा है। पूरी रूप से विधिवत रूप से सभी परिवार स्वस्थ बने, सभी परिवार मस्त बने, पहले के विवेकानंद जैसे विशिष्ट कोटि के महापुरुषों का आगमन हो, उसी के लिए पूरा मेडिटेशन, ध्यान, स्वस्थता, आयुर्वेदिक जो उत्कृष्ट नियम है, योगासन है, वो सारी चीजें कराते कराते राजन सुरेश्वर जी महाराजा जो कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर मुनीश्वर स्वामी भगवान की मम्मी के मन में भी विचार आया, जैसा आपकी पेट के अंदर बालक होगा, जैसा अन्न वैसा ओडकार, पानी जैसा वाणी, और उसी प्रकार से मम्मी को विचार आया कि मैं बहुत सारे मुनियों को भोजन कराऊं, गोचरी बहराऊं, और मैं बहुत सारे व्रत करूं, और इसीलिए जो बच्चे का जन्म हुआ, इसीलिए 20वें तीर्थंकर भगवान का नाम मुनि सुव्रत स्वामी भगवान। तो जब जब भी आपको होता है कि मैं उपवास तो नहीं कर पाऊंगा, मैं वर्षी तप तो नहीं कर पाऊंगा, परवादिराज पर्युषण में 28 तो नहीं कर पाऊंगा, तो मन को मजबूत बनाते हुए ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री मुनि सुव्रत स्वामी ने नमः, ज्यादा से ज्यादा इस महामंत्र की मंत्र जाप आराधना साधना करें, क्योंकि इसके माध्यम से सहनशीलता का गुण बढ़ेगा। लंबे समय से जो काम रुके हुए शनि संबंधी जितने भी काम, वो कार्य के अंदर गति बढ़ेगी। और आखिरी जो है 9, 8, 27 जिसका भी जन्म मूलांक है 9 नंबर, उनको कौन सा मंत्र गिनना चाहिए? आज आपको आपकी डायरी में बराबर इसको लिख लेना है, और इसके अलावा सारे मंत्र को धीरे 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 करते हुए, पहले तो आप गुरु महाराज नक्की करें और बाकी के सारे मंत्र को बंद करते हुए सिर्फ एक ही चीज को घूटते रहें,
100 फुट का खड्डा खोदोगे पानी 100% निकलेगा, 10-10 फुट के 10 खड्डे खोदोगे पानी निकलेगा भी सही और नहीं भी निकलेगा। तो जिसका मूलांक 9 है, जो भी बिल्डर है, जो भी रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, वो सभी लोगों को अपना मंगल बलवान बनाना है। बहुत लंबे समय से मकान को आप बेचना चाहते हो, खुद का मकान लेना चाहते हो, रियल एस्टेट का कोई भी काम आप करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पावरफुल मंत्र, लंबे समय से बहुत सारी बीमारी आ गई है, तो रात को सोने से पहले जैसे ही आप सोने के लिए जा रहे हो तब ज्यादा से ज्यादा ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री वासु पूज्य स्वामी ने नमः, ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री वासु पूज्य स्वामी ने नमः ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करना है। 3 बातें मुझे आपको बतानी है, जिसमें एक बात मैंने आपको बता दी है कि सुबह में उठते ही भगवान की जबरदस्त शुक्रिया करो। अगली 60 मिनट आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले हम पूरी शरीर का शुद्धिकरण करेंगे। आज शनिवार है और बहुत सारे लोगों को शनि की नेगेटिविटी चल रही है, लंबे समय से काम है, बहुत सारी दवाइयां हैं, तो बराबर पलाठी लगा करके बैठ जाइए, सारी चीजों को नीचे रख दीजिए और इसी के साथ एक एक चक्र को स्पर्श करते करते मुनीश्वर स्वामी जी भगवान की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो रही है। इसी भावना के साथ में, वंदना के साथ में हीलिंग का पूरा कार्यक्रम आज हमारे साथ में पूजा जी आ रहे हैं, तो आपकी पूरी बॉडी का शुद्धिकरण करेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी चीज की आप दवाइयां खा रहे हो, जो भी चीज की लंबे समय से कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, मुनीश्वर स्वामी जी भगवान की दिव्य ऊर्जा को प्राप्त करते करते पूर्ण शुद्धिकरण भी ज्वाइंट है। 7 चक्र के अंदर खास राजगुरु महातीर्थ के मुनीश्वर स्वामी भगवान, जिन्होंने भी मुनीश्वर स्वामी जी भगवान को देखा है, उनको बराबर यहाँ पर नोट पेन सब कुछ साइड में रख दीजिए और विजुअलाइजेशन के साथ में यदि आप ठीक हो तो आपके आज्ञा चक्र में जो भी व्यक्ति बीमार है, कोई भी व्यक्ति को कोरोना हो गया है, कोई भी व्यक्ति लंबे समय से डायबिटीज से दर्दी है, कोई व्यक्ति को डॉक्टर ने बाईपास बोला है, कोई व्यक्ति डॉक्टर को अभी ढूंढ रहा है और डॉक्टर नहीं मिल रहा है, हे मुनीश्वर स्वामी जी भगवान, हे महामंत्र, हे नमस्कार महामंत्र, आपके दिव्य प्रभाव से सकल विश्व शांत हो, सकल विश्व स्वस्थ हो, मैं मस्त हूँ, मैं मेरे पूरे परिवार को बहुत प्रेम कर सकूं। आइए इसी भावना के साथ आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है, स्वस्थ हो रही है, शांत हो रही है और उनके साथ हम पूरा मेडिटेशन करेंगे 5 मिनट और इसके बाद आखिरी चरण की मैं आपको बात बताऊंगा और बहुत सारे अपन सवालों के अंदर आगे बढ़ेंगे। हेलो, प्रणाम, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हम सभी ने मंत्र शक्ति के बारे में बहुत सारी बातें जानी। आज शनिवार है और मुनीश्वर स्वामी की हम आराधना करना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप सबको 7 चक्रों के पोजीशंस, एक स्क्रीन यहाँ पर शेयर होगा, आप 7 चक्रों के पोजीशंस देख लीजिए, उसके बाद हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 7 चक्र का पूरा चार्ट है, 7 चक्रास का चार्ट है, जिसके अंदर टॉप ऑफ द हेड मतलब सबसे ऊपर है क्राउन चक्रा, जिसको सहस्त्रार चक्र बोलते हैं। यहाँ से पूरी डिवाइन एनर्जी, जो मुनीश्वर स्वामी की पूरी हमको एनर्जी मिलेगी, जो आज शनिवार के दिन शनि ग्रह की जो हमको एनर्जी मिलेगी, वो यहाँ से एंटर होगी। क्राउन चक्रा ये टॉप, देन नेक्स्ट है 3rd आई चक्र, जिसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र के लिए आपका हैंड पोजीशन इस तरीके से रहेगा, लेफ्ट एंड राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड ऐसे ऊपर, उसके ऊपर राइट हैंड ऐसे प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आज्ञा चक्र। उसके बाद 3rd थ्रोट चक्र, मतलब यहाँ पर गले में, कंठ में आपका थ्रोट चक्र है। उसके बाद हार्ट चक्र, हृदय चक्र, चेस्ट के बीच में सेंटर में हार्ट चक्र। उसके बाद है सोलर प्लेक्सस चक्र, नाभि से थोड़ा सा ऊपर आपके दोनों हाथ रहेंगे, सोलर प्लेक्सस चक्र। सोलर प्लेक्सस चक्र के नीचे है सैक्रल चक्र, जिसको स्वादिष्ठान चक्र भी बोलते हैं, और वो सोलर प्लेक्सस से थोड़ा सा नीचे रहेगा, 3 या 4 उंगली नीचे रहेगा। और लास्ट में है मूलाधार चक्र यानी कि रूट चक्र, जिससे
पूरा का पूरा जो कुंडलिनी योगा बोलते हैं या जो कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं वो शक्ति यहाँ से पास होती है। तो ये 7 चक्र के साथ पोजीशंस हो गए। अब हम सबसे पहले एक प्रेयर करेंगे छोटा सा, और आप सब आंख बंद करके आराम से रिलैक्स होके ओमकार का जाप मन में भी करेंगे। मैं भी यहाँ से 3 टाइम्स ओमकार का चैंटिंग करूंगी। सब हाथ जोड़ के आंख बंद करके धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग करते हुए अगेन डीप ब्रीदिंग, ऊंडा श्वास लेते हुए अगेन थर्ड टाइम अब आपको ज्ञान मुद्रा रखनी है। अभी जैसे निकुंज गुरुजी ने सिखाया इस तरीके से ज्ञान मुद्रा रखते हुए इसको आप अभी नीचे रखेंगे। बाद में जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगा आप ज्ञान मुद्रा के साथ या डायरेक्ट इस तरीके से चक्रास के ऊपर एनर्जी देंगे। ठीक है, आंख बंद और ज्ञान मुद्रा में बैठे हुए श्री सूरत जिनेन्द्रस्य नाम्ना सूर्यांग संभव प्रसन्नो भव शांतिं च रक्षां कुरु जय श्रियम्। अब धीरे धीरे आप अपने दोनों हाथ को सहस्त्रार चक्र के ऊपर रखेंगे। एनर्जी को आता हुआ फील करेंगे और ओमकार का नाद जाप कर सकते हैं। मुनीश्वर स्वामी का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री मुनीश्वर स्वामिने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री मुनीश्वर स्वामिने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री मुनीश्वर स्वामिने नमो नमः। अब एंड पोजीशन आज्ञा चक्र के ऊपर इस तरीके से सेट होगा आपका हाथ। आंखें बंद करते हुए ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री मुनीश्वर स्वामिने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री मुनीश्वर स्वामिने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री मुनीश्वर स्वामिने नमो नमः। अब हैंड पोजीशन आएगा थ्रोट चक्र के ऊपर, गले के ऊपर आपके दोनों हाथ कंठ के ऊपर रखते हुए डीप ब्रीदिंग करते हुए ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री मुनीश्वर स्वामिने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री मुनीश्वर स्वामिने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्री मुनीश्वर स्वामिने नमो नमः। हैंड पोजीशन ऑन हार्ट चक्र।
ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्रीं मुनिसुरस्वामिने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्रीं मुनिसुरस्वामिने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्रीं मुनिसुरस्वामिने नमो नमः। ओम। नेक्स्ट हैंड पोजीशन मणिपुर चक्र के ऊपर। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्रीं मुनिसुरस्वामिने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्रीं मुनिसुरस्वामिने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्रीं मुनिसुरस्वामिने नमो नमः। ओम। नेक्स्ट सेकंड लास्ट चक्र सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान जिसको बोलते हैं। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्रीं मुनिसुरस्वामिने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्रीं मुनिसुरस्वामिने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्रीं मुनिसुरस्वामिने नमो नमः। ओम। और बेस चक्र रूट चक्र। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्रीं मुनिसुरस्वामिने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्रीं मुनिसुरस्वामिने नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं श्रीं मुनिसुरस्वामिने नमो नमः। ओम। अब सभी हाथ जोड़ के आंखें बंद ही रखेंगे और एक प्रेयर सुनेंगे जिसको हम फॉरगिवनेस प्रेयर बोलते हैं, करुणा रेकी भी बोलते हैं जिसको। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त करी, मुक्ति सुख सहु जगवरो। हामे मी सव जीवे, सौवे जीवा कमंतु में, मित्ति में सव भूयेषु, वेरम मसन केणई। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। अरहं मैया अमरत हो, अरहं मैया अमरत हो, अरहं मैया अमरत हो। अभी हाथ को ऐसे रब करते हुए एनर्जी फील करेंगे और एनर्जी को धीरे 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 अपने सहस्त्रार चक्र से डाउन 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 लेते हुए पूरे बॉडी में प्रसार करेंगे। तो ये हमने किया मुनीश्वर स्वामी जी का स्पेशल मेडिटेशन आज शनिवार के लिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जेएस जी ग्रुप को, शिल्पा बेन को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू निकुंज गुरु जी। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। थैंक यू पूजा जी, बहुत सरस रह्યું।
બહુ જ સરસ કરાવ્યું તમે. थैंक यू. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. पूजा जी जो है वो हमारे जामनगर से हैं और प्राणी किलिंग के सुपर एक्सपर्ट है और हमारी टेक्निकल की पूरी टीम वो चलाते हैं. ऐसे 40 लोग जो मैंने तैयार किया है और हर रोज रात को 9:30 बजे 15,000 लोग. कल सोमवार से वापस होगा. भक्तामर हीलिंग की एक प्रक्रिया सिखाते हैं और उसमें काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं, काफी सारे लोग सीख सकते हैं. तो 3 बातें में से 2 बात और हम सीखेंगे. फिर शिल्पा जी बहुत सारे लोग हैं, उनके हम सवाल जवाब लेंगे. फेसबुक पर से भी बहुत सारे सवाल आए हैं. करीबन फेसबुक पर 7,000 से भी ज्यादा अलग अलग जगह से लोगों ने वीडियो को देखा है. और एक मैं आपको आज टेक्निक सिखाऊंगा कि मैं कैसे सभी को हीलिंग देता हूँ. आपके जो मंत्र होते हैं, आप ये जो हीलर भी होंगे अपने अपनी अलग अलग चीजों से हीलिंग देते होंगे, लेकिन मैं कैसे हीलिंग देता हूँ सबको, आज पहली बार आप सभी को सिखाऊंगा. और आप लोग करेंगे और आप खुद मुझे फोन करेंगे कि हमने किसी को हीलिंग दिया और उसको फर्क हो गया. तो पहले नंबर के अंदर जैसे ही आप सुबह में उठते हो तो सबसे पहले क्या करना है, भगवान की शुक्रिया कि आज मुझे एक नया जन्म मिला है. भगवान तेरी लाख लाख शुक्रिया है और आज मैं बहुत अच्छा कार्य कर सकूं, ऐसा मुझे सामर्थ्य दे. इतना सबको बोलना है. हर दिन हर पल आपको उत्सव बनाना है. लाखों लोग आज इतनी भयंकर मानसिक अवस्था के अंदर डूब रहे हैं, मर रहे हैं, तनाव के अंदर जी रहे हैं, लेकिन आप इतने उत्तम लोग हैं कि आप परिवार के साथ में अपने घर के अंदर बैठे 2.5 महीना से पूरी दुनिया जब रुकी हुई है, आपकी खुशी का कोई भी प्रकार का टेंशन आपको दिखा नहीं है. तो भगवान की खूब शुक्रिया अदा करें. उठने के साथ आप सभी को खास मैं कहना चाहूंगा कि आप जैसा उठने के साथ पहली 24 मिनट जो भी आप देखते हैं, सैकड़ों लोग आज बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, या तो उसको पता नहीं है. उठने के साथ आप जो भी देखते हो वही घटना आपके साथ पूरे दिन के अंदर होती है. हमने ये हजारों लोगों के ऊपर लास्ट अप्रैल महीने से पूरा स्टडी करना शुरू किया है. गुरुदेव का जो आदेश आया था, सुबह की जो 24 मिनट है, जैसे ही आप उठते हो कम से कम हमें आधा घंटा हमें सिर्फ दे दीजिए और उसमें वही चीज आप देखेंगे जो आप पूरा दिन में करना चाहते हो. शिल्पा जी सुबह में उठ करके क्या करते हो आप अभी भगवान का नाम लेती हूँ पहले. कितने मिनट तक? 10 मिनट्स. यस, तो उसको अभी आप लीडर हो, इसके लिए 24 मिनट आपको कर देना है. 24 मिनट समाचार नहीं देखना है, कोई भी मोबाइल बिल्कुल हाथ में नहीं लेना है. हमारे शिल्पा जी बहुत अच्छे हैं कि उठ करके मोबाइल नहीं देखते हैं, इसके लिए इनका चेहरा भी इतना जबरदस्त है, इतने पॉजिटिव है. लेकिन मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि पूरा दिन आप स्वस्थ रहना चाहते हो, सुबह में दुनिया भर के समाचार देखेंगे, पढ़ेंगे, हिंसा, तनाव, झूठ, चोरी, डकैती, ये सब पढ़ेंगे, वही सारे वाइब्रेशन आपके दिमाग में, आपकी आंखों में, आपके शरीर में जाने वाला है और वही श्रृंखला से पूरे जीवन की, पूरे दिन की यात्रा आपकी होने वाली है. चंद्रशेखर जी महासाहेब ने जीवन जीवानी वातों अंदर स्पष्ट रूप से लिखा है कि रोज सुबह की 24 मिनट और रात की 24 मिनट, रात को सोने से पहले 24 मिनट टीवी पहले बंद कर दीजिए. क्योंकि शरीर से तो आप सो रहे हो, ऐसे हजारों लोगों के फोन आ रहे हैं, गुरुजी हमें 7 दिन का हीलिंग दीजिए, विचार शांति नहीं हो रहे, रात को सोते समय भी झपक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, पसीना आ जाता है, एसी के अंदर डर लगने लग जाता है. तो 3 चीजों में पहली चीज है, सुबह में भगवान की शुक्रिया अदा करो. सुबह के अंदर पहली 24 मिनट भूल से भी मोबाइल नहीं लेना है, कोई भी प्रकार का आपको समाचार नहीं देखना है. सिर्फ और सिर्फ धार्मिक जो भक्ति की गुंज है, भक्तामर स्तोत्र है, कोई भी धार्मिक मंत्र जाप है, शांति से मेडिटेशन कीजिए. कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़े से प्राणायाम कीजिए और उसी के साथ आप सुबह की 24 मिनट जैसे ही आप निकालते हो, आजकल पूरी रात तक लोग मोबाइल के अंदर पड़े रहते हैं और जो आप देख रहे हो आखिरी समय के अंदर आपने देखा कि लोग कोई किसी का कत्ल कर रहे हैं, कोई क्राइम कर रहे हैं, कोई अलग अलग प्रकार का घर टूट रहा है. वो सिर्फ टीवी में नहीं हो रहा है, वो सारे चित्र आपके दिमाग के अंदर स्टोर हो रहे हैं, वो सारी भावना आपके दिमाग के अंदर. अभी गुरुदेव ने मुझे एक घटना बताई कि बहुत सारे चैनलों के ऊपर क्राइम शो जबरदस्त चालू हो चुके हैं और आप कल्पना करें कि इतने सारे क्राइम की घटना आप देखेंगे तो उससे 2 ही चीज आपके अंदर निर्माण होगी, एक तो चिंता बढ़ेगी और दूसरे नंबर के अंदर भय. चिंता और भय बढ़ता है, आपकी नींद खलास हो जाती है. गुरुदेव के पास एक व्यक्ति आया था सुबह में, वो व्यक्ति की जो पूरी जीवनचर्या, पूरा दिन वो क्राइम की जो सीरियल है वो देखता रहता था. सुबह में भी एक दिन वो देख रहा था और गुरुदेव ने उनको देख लिया, तो गुरुदेव ने उसको पूछा, कोई सुबह तू ये क्या देख रहा है?
तो भाई मैंने रात को जो सीरियल छोड़ दी है उसका थोड़ा भाग मैं देख रहा हूँ। उन्होंने देख लिया, काफी समय तक नॉर्मल बातचीत चलती रही। फिर गुरुदेव को उन्होंने पूछा, आचार्य मास्टर जी को, कि बाकी तो सब मेरी लाइफ के अंदर नॉर्मल है, लेकिन मुझे डर बहुत लगता है। मैं कभी भी घर से बाहर निकलता हूं तो मुझे मन के अंदर भय सताता रहता है कि मैंने मेरा घर लॉक किया कि नहीं किया। मैं मेरे रूम से बाहर निकलता हूं तो मैंने मेरा एसी जो चालू था, गीजर जो चालू था, वो किया कि नहीं किया। और उसके लिए अभी से मैंने ऐसा कर दिया है कि मैं जब भी ताला बंद करता हूं तो उसकी फोटो खींचता हूँ, और ऑफिस में मुझे ऐसा विचार आया तो मैं उसको देख रहा हूँ। आप पूरी घटना को समझ रहे हैं, आप सारी तरह से भय के, चिंता के जितने भी चित्र देख रहे हैं, वो खाली सीरियल वहां पर खत्म नहीं हो रही है, उसकी सारी ब्लूप्रिंट आपके जीवन के अंदर छप रही है, बन रही है, और रूटीन लाइफ के अंदर आपको डिस्टर्ब कर रही है। तो भगवान महावीर स्वामी जी का, चंद्रशेखर विजय महाराज साहब जी का 3 जीवन सूत्र है। आप उपवास करें, दान दे, भक्ति करें, सामायिक करें, पूजा करें, बहुत अच्छी बात है। और वो कुछ भी नहीं कर सकते तो 3 नियम, रोज भगवान की शुक्रिया अदा करना है। सुबह में 24 मिनट जो आप बनना चाहते हो, आपके जो ड्रीम है, आप करोड़पति बनना चाहते हो तो वो उस प्रकार का देखिए। आप आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हो, वैसा संगीत बजाए। आजकल तो मेडिटेशन के इतने जबरदस्त संगीत है, नवकार मंत्र की जो लता मंगेशकर की धुन है, भक्तामृत स्तोत्र का गान है, ऐसी संगीत की ध्वनि तरंग घर के अंदर बजाइए। और जितने भी बजे आपको सोना है उसके आधा घंटा पहले से रिलैक्स 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 होना शांत कर दीजिए, नहीं तो आप शांति से सोएंगे नहीं, दिन अच्छा शुरू नहीं होगा, और पूरी तरह से डिस्टर्ब यात्रा आपकी चालू हो जाएगी। इसी प्रकार से मंत्रों का गान करते रहिए, 3 बातों को समझते रहिए। आप जरूर, मुझे विश्वास है कि आप उतारेंगे, क्योंकि आप सभी लोग बहुत बहुत महान हैं, समझने वाले हैं, और जीवन को और बेहतर दिशा में लेके जाने वाले हैं। 3 अगले महीने में ग्रहण आने वाले हैं, बहुत स्पेशल दिन है। उसके अंदर आपको क्या करने चाहिए, इसके पहले कुछ हम लोगों का सवाल ले लेंगे, और उसके बाद आज के कार्यक्रम के अंतिम चरण के अंदर बहुत सारे दृष्टियों को भाव से मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मेरा अभ्यास तपोवन में हुआ है, बहुत सारे साधु साध्वी जी महाराज साहब जी को पढ़ाने के बाद, कई विदेशों के अंदर नमस्कार महामंत्र भक्तामृत की आराधना कराने के बाद, तोरल जी और शिल्पा जी हमारे क्लास के अंदर जुड़े थे, जिनके माध्यम से आज वापस आप सभी के बातें करने का मुझे मौका मिला। तो मैं खुद मेरी जात को गर्व अनुभव करता हूँ। रोज रात को आपको 9:30 बजे सबसे पहला काम, आप यदि मुझसे जुड़ना चाहते हो, ऐसी बहुत सारे रिसर्च, 400 से भी ज्यादा वीडियो मेरे YouTube के ऊपर है, गूगल के ऊपर आप निपुण गुरुजी डालेंगे तो सारी चीजें आ जाएंगी। खास करके भक्तामृत हीलिंग कोर्स का पूरी प्रोसेस 12 दिन का हमने कोर्स बनाया है, और हजारों लोगों ने सीखा है, हजारों लोगों ने अनुभूत किया है। तो वो कोर्स भी आप सीख सकते हो। साथ साथ में खास करके 5 तारीख को जिसके भी घर के अंदर पद्मावती माता जी की प्रतिमा है, तो 5 तारीख को पूर्णिमा है, और 1008 परिवारों को एक साथ में हम पद्मावती महापूजन का भी एक बहुत भव्य आयोजन किया है। वो सारी चीजों में जुड़ेंगे। अब कुछ लोगों का पहले ये विषय के जो आज हमने चर्चा की है, आप यदि रोजिंदा कोई मंत्र गिन रहे हो, गुरु के बारे में आप जानना चाहते हो, या इस विषय का कोई भी आपको क्वेश्चन है, तो हम थोड़े सवाल ले लेंगे, और उसके बाद आज की यात्रा के आगे बढ़ेंगे। पूजा जी सबको अनम्यूट कर दीजिए, और शिल्पा जी जिसका भी नाम बोले वो खुद अपने आप को एक एक बारी बारी से अनम्यूट करें कर हम चर्चा करेंगे। हमारा वाइस प्रेसिडेंट છે મિસ્ટર મુકેશભાઈ શાહ, એ કઈક કહેશે તમને। ओके, જયશ્રીબેન, 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 મુકેશભાઈ ક્યાં ગયા? अच्छा, नलिनभाई कई कैसे आपने? દરેક જણા પોતાની જાતે જ અનમ્યુટ કરજો। સાહેબ પ્રણામ। પ્રણામ। ખરેખર ઘણું બધું જાણવા મળ્યું, જે આપણને એટલી બધી ખબર નહોતી। હું સાહેબ ઘણા વર્ષોથી જાપ કરું છું। મેં તમને આજે જાપ મારું જે હું જે કરું છું એનું લિસ્ટ પણ મેં તમને વોટ્સઅપ કર્યું છે, અને આ જ વસ્તુનો મને સવાલ જવાબ મારા મગજમાં હતા કે કયા જાપ શેની માટે ને ક્યારે કરવા જોઈએ, કે જે મને ખબર નથી। હું તો વર્ષોથી મારી મળે કરું છું,
મને કોઈ જાતનું કોઈ રોગ કે એવું કાંઈ છે નહીં, પણ કોઈએ મને કીધું પણ નથી. પણ આજે તમારું જાણ્યા પછી ખબર પડી કે દરેક વસ્તુની પાછળનું જાપ એટલે દરેક ભગવાન એટલે તારીખ પ્રમાણે ભગવાનના જાપ કરવા જોઈએ, જેના ફાયદો હોય, કે જેના હિસાબે જેને હિસાબે કોઈ તમને ફળ મળી શકે, શાંતિ મળી શકે, વૃદ્ધિ થઈ શકે, ધંધામાં બધું કરી શકાય. એટલે તો હવે એટલે મારું એ કહેવાનું છે કે બધા તારીખ પ્રમાણે તો આવી ગયા છે સાહેબ, પણ હવે નાઉ એનીથિંગ સ્પેસિફિક સમથિંગ લાઈક દેટ જો લોકોના જે બધા પોતપોતાની તારીખ પ્રમાણે લખ્યું છે, બીજા કોઈ સવાલ જવાબ કરવા હોય તો બધા જરાક સવાલ જવાબ કરો. બાકી મારા હિસાબે તો આઈ અન્ડરસ્ટુડ ક્લિયરલી, અને ધીસ ઇઝ રિયલી વેરી ગુડ ઓપોર્ચ્યુનિટી that everybody has availed lot of input, lot of જ્ઞાન, અને આથી વધારે એટલે બધાના જ્ઞાન આનું મળ્યું. બધા ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ. અને મારો જે વોટ્સઅપ છે જરા વાંચી લે, તમને આપને જ્યારે સમય મળે ત્યારે જયારે તમારી હિસાબે તમે મને કહેજો, એ પ્રમાણે હું વાત કરીશ સાહેબ. ખૂબ સરસ નલિનભાઈ, તમે સેવા કરો છો. ભગવાન તમને અનંત બળ શક્તિ આપે. આટલું બધું ગ્રુપ સરસ ચલાવી રહ્યા છો. અને પાછા અત્યારે તો આપણે ઝૂમના માધ્યમે મળ્યા છીએ. મુંબઈમાં પાછા શિલ્પાબેન અમે એક વખત આવીએ ત્યારે એક ભવ્ય સરસ મજાનો આપણા ગ્રુપ દ્વારા એક સુંદર મજાનો ભક્તામૃત રિલીંગનો કાર્યક્રમ થાય, કે જેના દ્વારા ઓર હજારો લોકો એની અંદર ભલે 6 મહિના 12 મહિના પછી જયારે નોર્મલ વાતાવરણ થાય પાછા આપણે મળીએ છીએ. કોમન બધાએ 2 મંત્ર ગણવાના છે. જેમ નલિનભાઈ કીધું કે ઓલ બધું મારે ઓકે છે, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो ऑल पैसा છે, रुतबा છે, समाज के अंदर नाम है, सब कुछ है, उन सभी को और कोई भी मंत्र नहीं गिनना है, क्योंकि सारे मंत्रों का सार नवकार मंत्र है. 1000 मंत्र आप गिनो, 1 लाख बोली जो बोलनी हमारे. हाँ, सुरेश जी कुछ बोलना चाहते हैं. हाँ, सारे मंत्रों का 1-2 मिनट के मोबाइल नहीं देखना है तो भगवान का दर्शन कर सकते हैं उसमें. 1 सेकंड. हेलो, हाँ 1 मिनट हो. तो पहली मेरी बात भाई, जिसके पास सब कुछ है ऐसा मान लिया, मतलब आपके पास पुण्य लक्ष्मी है, इसके लिए आप ऐसा फील कर पा रहे हो, तो आपको आगे जाकर के सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा नमस्कार महामंत्र, और आपके जो कुल देवी है और आपके जो सिटी गांव के अंदर रहते हैं वहां के मूल नायक है, या आप जहाँ रहते हैं वहां के मूल नायक, इनके अलावा आप कोई भी मंत्र नहीं गिनते हो तो भी आपके पास अतुल बल, अतुल पराक्रम, अतुल धन और सारी संकल्प शक्ति आपकी बढ़ जाएगी. बहुत बहुत नलिन भाई आपका धन्यवाद है. बहुत बहुत आपको प्रणाम. हाँ जी, हाँ सुरेश बोलिए. हाँ, आपने बोला सुबह उठ के मोबाइल नहीं देखना, तो इसे भगवान का फोटो का दर्शन करते हैं. कुछ भी नहीं, मोबाइल में भगवान का फोटो का आँख बंद के ऐसे दर्शन कर लेने का. मोबाइल आंख बंद करके ही करना है. 24 मिनट तक तो मोबाइल लेना ही नहीं है. हाँ हाँ. और दूसरी बात मैं आपको बता हूँ, मोबाइल अनिवार्य है, लेकिन खास करके ऐसे कोई भी मैसेज आ रहे हैं कि जो मैसेज से लोगों की जिंदगी का बैंड बजने वाला है, ऐसे कोई भी मैसेज बनाने वाले ने भले बना दिया, लेकिन आज के जूम का पूरा सारांश कि ऐसे कोई भी मैसेज को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे नहीं. तो भी आप पुण्य के भागी बन रहे हो. बनाने वाले ने तो जो करना था वो कर दिया, लेकिन हम अनजाने में भी जब तक आपको पूरा पता नहीं हो तब तक वो मैसेज को हम आगे भी फॉरवर्ड नहीं करेंगे. प्रणाम. जय जिनेन्द्र. सुना मतलब नेक्स्ट हमारा विजय भाई संगराज का जॉइंट सेक्रेटरी है. विजय भाई संगराज का. विजय भाई अनम्यूट करो तमारू. हेलो हेलो. हाँ जी, प्रणाम. बोलो. प्रणाम निकुंज भाई. કેમ છો? અવાજ આવે છે? એકદમ. हाँ हाँ. પ્રણામ નિકુંજ ભાઈ. મારે આપણે પૂછવું છે કે આપણે 84 લાખ જીવો પછી આપણે માનવ જન્મ મળ્યો છે, એ આપણે બધા જૈનો બોલતા હોય છે, બરાબર છે? તો એના માટે મારે એ જાણવું છે કે આપણે જે પણ 84 લાખ જીવો પછી જ આપણે માનવ જન્મ મળે, એ કોઈના સારા કર્મોથી એને આવતો જન્મ બીજો પણ મળે, કે એક જન્મ પછી સીધો 84 લાખ નો ગેપ આવે, એ મારે જાણવું છે ખાલી. ના, અહીંથી આપણે એટલા માટે મેં આજના લાઈવમાં શરૂઆતમાં જ મેં તમને કીધું કે તમે આજે પ્રવચનમાં પણ બેઠા તો શેના માટે બેઠા? ત્રીજા ભવે આજે જેને પણ પ્રવચન સાંભળેલું છે, એટલે નેક્સ્ટ તમારો હજી એકાદો ભવ કદાચ થઈ જાય, એના પછી બધા જ લોકો મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં જાય, અને એના પછી બધાએ ત્રીજા ભવે આપણે બધાએ મોક્ષમાં જવાનું છે. તમને જીવદયા ગમતી હોય, તમને લોકોને જમાડવાનું ગમતું હોય, તમને મેડિટેશન ગમતું હોય, નવકાર ગણવા ગમતા હોય,
XYZ કંઈ પણ ગમતું હોય એ ગણતાની પહેલા જ બોલવાનું છે કે ભાઈ મારે ત્રીજા ભવે ક્યાં જવાનું છે, મોક્ષમાં. બસ. એની સાથે તમે કરશો એટલે તમારો સંકલ્પ પૂર્ણ થવાનો છે. ઓકે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ધન્યવાદ. પ્રકાશભાઈ નમસ્કાર. નમસ્કાર ગુરુજી. નમસ્કાર. મારો એક સવાલ છે. વાસ્તુશાસ્ત્ર આજકાલ બધા આપણે બહુ જ ફોલો કરીએ છીએ. મારું એ જ જાણવું છે કે જૈન ધર્મ પ્રમાણે વાસ્તુશાસ્ત્રનું શું મહત્વ છે? જો વાસ્તુ જેટલા પણ યુનિવર્સલ નિયમો હોય ને એ જૈનોને પણ લાગે, બ્રાહ્મણોને પણ લાગે, હિન્દુ દુનિયામાં પૃથ્વી ઉપર જેટલા ઉતરેલા છે એ બધાને લાગે. અને આ દુનિયાનું સૌથી બેસ્ટ વાસ્તુ છે ને મંદિર છે. આપણે મંદિરમાં જઈએ છીએ ને કેમ શાંતિની અનુભૂતિ થાય છે. ગમે તેવો માણસ સ્ટ્રેસમાં હોય, ગમે कितना भी इंसान तनाव में रहता है तो उसको तुरंत शांति की अनुभूति क्यों होती है कि आपने कभी देखा होगा तो मंदिर का जब बनता है तो उसकी जो जमीन रहती है, खड्डा जब खोदते हैं तो वहां से पूरी तरह से वास्तु का उसके अंदर यंत्र रखते हैं, उसके अंदर सोना रखते हैं, उसके अंदर काचबा रखते हैं, उसके अंदर अलग अलग प्रकार की शिला स्थापन कभी कभी किसने तो लाभ लिया ही होगा. तो पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वास्तु वो हमारा जैन मंदिर है, वो हिंदू मंदिर है. इसी के कारण हमारी कितनी भी नकारात्मक एनर्जी होती है वो वहां पर जाकर के शांत हो जाती है. पहले के जमाने के अंदर जितने भी घर थे वो सब वास्तु के हिसाब से ही थे. अभी जगह की कमी के कारण, जल्दी जल्दी पैसा बनाने के कारण और वर्तमान जो परिस्थिति आप सभी लोग जानते हैं, इसके लिए जो जगह मिली है कम जगह के अंदर पूरा एडजस्ट करके सब लोग बना रहे हैं. और इसी का कारण है कि बिना काम का टेंशन, बिना काम की चिंता, बिना काम की रुकावट, थोड़े ऊपर चढ़े वापस डाउन हो गए, क्योंकि एनर्जी तो उसका काम करती है, आप मानो या ना मानो. आपका एक हाथ कट जाए तो उसकी दर्द, वेदना और उसकी कमी तो महसूस होने वाली है. तो आपके घर में एक कॉर्नर कट हुआ है तो वो एनर्जी आपको नहीं मिलेगी, तो वहां पर आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा. एक ही चीज में दो लोग रहते हैं, एक का पूरा प्रॉपर मकान है तो इजीली आगे जाता है, वो ऑफिस नहीं जाने के बाद भी हजारों रुपया कमाता है. लेकिन आपका घर प्रॉपर नहीं है, आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बाथरूम है, तो नॉर्थ ईस्ट यानी अपना दिमाग, वहां पर ही रोज गंदगी आ रही है और फिर आप मेडिटेशन करने बैठिए, पॉजिटिव विचार लाने की कोशिश करें तो उसमें बहुत 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 दिक्कत होती है. पुण्यशाली व्यक्ति होता है उसको वास्तु की असर नहीं होती है, पर वो लॉन्ग टाइम नहीं, नेगेटिविटी आपको डिस्टर्ब करती है. बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश भाई. જાપ કરો છો તમે? જાપ હું સવારે રાતે નવકાર મંત્ર ગણું છું. સવારે ઉઠીને નવકાર મંત્ર નવકાર ગણું મંત્ર છું. બોલતા પહેલા શું બોલશો તમે? હવે બોલીશ, ભગવાન જે મને જન્મ આપ્યો અને તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. એ તો ઉઠીને તરત બોલશો, પણ નવકારનો જાપ કરતા પહેલા મને ત્રીજા ભવે મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. નયનભાઈ વોરા આપણા ટ્રેઝરર છે જૈન સોશિયલ ગ્રુપના. હેલો, પ્રણામ. પ્રણામ પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. પ્રણામ સાહેબ. કેમ? અચ્છા, મારે એક પૂછવું, બસ કેમ છો ભાઈ? મજામાં? મજામાં. અચ્છા, મારો એક સવાલ છે કે આપણે જે સમૂહમાં જાપ કરીએ છીએ ને બધું કરીએ છીએ તો એમાં બધાનો એનો ફાયદો બધાને મળે કે બધાને પોતાના કર્મને પ્રમાણે મળે? મલ્ટીપ્લાય થઈને સમૂહમાં જાપ મળે. હા, સમૂહમાં થાય ને. ગણિતનો નિયમ એવું છે કે 1 + 1 = 2, લેકિન મંત્ર શાસ્ત્રનો નિયમ એવો છે કે એક વ્યક્તિ મંત્ર ગણે છે, એની બાજુમાં બીજો એક વ્યક્તિ મંત્ર જ્યારે ગણે જાપ થવાના છે, એમાં કોઈ વિશિષ્ટ તમારું આયોજન ન હોય તો બધા ખાસ બેસી જજો, 108 નવકાર મંત્ર ગણજો. ઘરે ગંગા ઓટોમેટિક આવી ગયેલી છે અને એનો જે પુણ્યનો પ્રચંડ પુણ્યનો બંધ, એટલે ઘણી બધી વખત આપણે વિચારીએ કે આ લોટરી કેવી રીતે લાગી ગઈ, તો ધંધો કરો ઓર્ડર આવી જાય, બમ્પર ખુશી આવી જાય. એ આ તમે જે સામૂહિક પુણ્ય જે કરેલું છે એના પ્રભાવે તમને પ્રાપ્ત થાય છે. અને સામૂહિક પુણ્યમાં તો જ તમે જોઈન થઈ શકો કે તમારો પ્રચંડ મહાઉદય હોય. તો કાલે માન લો કે એક્ઝામ્પલ તરીકે આયોજન છે પણ કાલે 10:30 વાગે જેવી ઇમરજન્સી મીટિંગ આવી જાય, તમે બેસી બરાબર. એકલા કરવા કરતા સામૂહિક આપણે ક્રિયા જે કરીએ છીએ એનું પુણ્ય પ્રચંડ 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 બંધાય છે. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. પ્રણામ પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. રીટાબેન શાહ આપણા જોઈન્ટ ટ્રેઝરર છે જૈન સોશિયલ ગ્રુપના. આપણા રીટાબેન, તમારો અવાજ નથી આવતો. રીટાબેન અનમ્યુટ કરો. અનમ્યુટ. ઈશાનું નામનું છે. હેલો હેલો હા બેન.
જય જિનેન્દ્ર. અવાજ આવે છે ભાઈ? આવે છે. હેલો નિકિનભાઈ, મને સાંભળી શકો છો? એકદમ જોરદાર આવે છે, બોલો. હા, પ્રણામ નિકુંજભાઈ. તમે જે સ્વસ્થ, સુખી, સમૃદ્ધ, શાંતિમય જીવન જીવવા માટેનું યોગ્ય મંત્ર અને ધ્યાન માટે જે સમજાવ્યું, અને પૂજાબેને અમને જે મુનિ સુરત સ્વામીને યાદ શરીર સુધી આવી, એ બદલ આપ બેવનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારે એ પૂછવાનું છે કે આપણે જે આ બધું યોગ્ય મંત્ર ને બધું કરીએ, પણ તમે કીધું એ પ્રમાણે આપણો તો મેઇન હેતુ મોક્ષ સુધી પહોંચવાનો છે. તો આપણે મંત્ર ને બધું કરતા કરતા આપણે મોક્ષની પ્રાપ્તિ ભૂલી ન જઈએ, આપણે એ પણ એક ઇન્ટેન્શન હોવો જોઈએ ને સાથે સાથે. તો એ આપણે કેવી રીતે કન્ટિન્યુઅસ એ યાદ રાખી શકીએ? પ્રશ્ન છે, મેં પ્રકાશભાઈને જ કીધું કે નવકાર મંત્ર ગણતા પહેલા શું બોલવાનું છે? ત્રીજા ભવે મોક્ષની પ્રાપ્તિ હોજો. કોઈ પણ ધર્મ ક્રિયા કરવા બેસો છો, સામાયિક કરવા બેસો છો, કોઈ પણ મારા સાહેબનું ટીવીમાં પ્રવચન પણ સાંભળો છો, પહેલા શું બોલવાનું છે? अंतिम गोल, आप कोई पण धर्म क्रिया आप कर रहे हो, उसका अंतिम गोल क्या है? तो भाई मेरा अंतिम गोल है कर्मक्षय और मोक्ष की प्राप्ति। और वो बोलना है, खाली सोचना नहीं है। वो बोलोगे तो उसका अभ्यास होगा, उसी तरह से आपकी पूरी प्रक्रिया होगी और उसी प्रकार से कर्म बंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। દીપિકાબેન દવે, દીપિકાબેન દવે નથી લાગતા. નિલેશભાઈ સંગરાજ કા? એ પણ નથી. અને નિશાનભાઈ, અમારા ટીમમાં એક ડેન્ટિસ્ટ છે, ડોક્ટર નિશાન ગાંધી, એ આવ્યા છે? નહીં, સોરી, એ પણ નથી. નિકુંજભાઈ, હવે બીજા કોઈને પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો તમે પૂછી જુઓ. હા, શિલ્પા. હા, દક્ષા. બોલો દક્ષાબેન. હાજી, બોલો બોલો. તું બોલ, ચાલ આવશે. હાલો, એમનો ફેસ નથી દેખાતો. બોલો બેન, પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર. પ્રણામ ભાઈ, જય જિનેન્દ્ર. મારે તો મારો પ્રશ્ન ખાલી, મને પ્રશ્ન માટે નહીં, પણ મારી મીન રાશિ છે. તો મારે કયા ભગવાનની નવકારવાળી ગણવી જોઈએ? એકચ્યુઅલી મારો સવારનો 1.5 કલાક મારી પૂજા હોય જ, ક્યાંય પણ હોઉં દુનિયાના કોઈ બી ખૂણામાં. સવારની 1.5 કલાકની પહેલી મારું ભક્તામરથી લઈને નવકારથી લઈને ચાલુ કરું તો બધું જ મારે ઘણું બધું માળા ને બધું હોય ગણવાનું. પણ છતાં બી હજી આજ સુધી મને જવાબ નથી મળ્યો મીન રાશિમાં કયા ભગવાન મીન્સ કયા ભગવાનની નવકારવાળી ગણીએ મીન રાશિમાં? બધા રાશિ પ્રમાણે ભગવાન હોય છે મારા હિસાબે. ઓકે, તમારી બેન જે રાશિ છે ને, પહેલા નંબરમાં તો તમે જે આટલા બધા મંત્રો ગણો છો, ખૂબ સરસ છે, પણ એને સૌથી પહેલા કોઈ ને કોઈ ગુરુ મહારાજ પાસે તમે જાઓ. તમને જેનામાં બિલીફ સિસ્ટમ હોય, જેને તમે માનતા હોય, એની પાસે જઈને વિધિપૂર્વક તમારે લેવા જોઈએ, કે જેનાથી તમને ઇફેક્ટ ઓર વધી જશે. જો વિધિપૂર્વક તમે લીધા છે તો ઓકે, અને જો નથી લીધા તો એને ખરેખર સુધાર કરવાની જરૂર છે. અત્યાર સુધી તમે જેટલા પણ મંત્ર ગણ્યા છે એનું તમને 100% રિઝલ્ટ નહીં મળે. મીન રાશિ વાળા જેટલા પણ વ્યક્તિઓ છે એ દરેક વ્યક્તિઓએ આદિનાથ ભગવાન ગુરુ ગ્રહ જે છે એ તમારા માટે તમારા રાશિનો સ્વામી ગ્રહ છે. ગુરુ ગ્રહ પણ પ્રતિદિન આદિનાથ ભગવાનને નમન કરે છે. એટલે તમે જે ભક્તામૃત ગણી રહ્યા છો એ એકદમ પરફેક્ટ છે. છતાં પણ મીન રાશિનો પર્ટિક્યુલર તમારે મંત્ર ગણવો હોય તો રાશિ પ્રમાણે ઓમ રીમ શ્રીમ અર્હમ શ્રી આદિનાથાય નમઃ, અને જો ગ્રહનો મંત્ર ગણવો હોય તો ઓમ ગુરુવે નમઃ. હું ગણું છું ઓમ રીમ શ્રી વિમલેશ્વર દેવ શ્રી ચકેશ્વરી દેવી પરિપૂજિતાય શ્રી આદિનાથાય નમઃ. ખૂબ સરસ, પણ આ ગુરુ ભગવાન પાસેથી લીધો હોય તો તમને ફરક પડે, નહીતર કોઈ રિઝલ્ટ. રસિકભાઈ કરીને હતા અમારા ગુરુ. એક મારા ગુરુજી હતા અહીંયા ઘાટકોપરમાં, રસિકભાઈ કરીને, એમને ગુજરી ગયા છે, મહેતા રસિકભાઈ મહેતા. એમણે મને આ મંત્ર લખીને આપ્યો છે કે તમારે આ બોલવાનો. અને એક મહારાજ સાહેબે બી મને લખીને આપ્યું છે કે આ મંત્ર તમે આખું બોલવાનું આવી રીતે. ખાલી આદેશ્વર ભગવાન. હા, એ બધાને ગુરુ પૂર્ણિમા આવી રહી છે ત્યારે યાદ કરવાનો. રસિકભાઈને પણ કે ગુરુદેવ તમે મારી ઉપર ખૂબ ઉપકાર કર્યો કે આવો અદ્ભુત મંત્ર મને આપેલો છે. ઓકે, એનો પાવર સતત આપણને મળ્યા કરે. યસ, બરાબર છે. ખૂબ ખૂબ સરસ, અનુમોદના, પ્રણામ. પ્રણામ.
શિલ્પાબેન, હા મારે પૂછવાનું છે. હા બોલો ને મમતા, બોલો. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. આવે છે બેન અવાજ? આપણો ફોટો એકચ્યુઅલી મારે એ પૂછવાનું છે કે બધા સાથે જાપ કરીએ, છોકરાઓ અમે ફેમિલી બધા સાથે જાપ કરીએ, પણ છોકરાઓ એમાં બોલતા નથી, ખાલી એ બેસીને સાંભળે છે. એમને ફાયદો થાય ખરા? 100% બેન ફાયદો થાય. એ જે શબ્દની ધ્વનિ તરંગો થઈ રહ્યા છે બરાબર, એના કર્ણપટલ કાનમાં તો એ મંત્રની ધ્વનિ જઈ જ રહી છે. અને એ ગણતા પહેલા તમારે બધાએ સંકલ્પ કરવાનો છે કે ભાઈ તમારું નામ મમતા છે. શું નામ છે તમારું? હા, આ મંત્રના પ્રભાવે મમતા, પછી તમારા જે હસબન્ડ હોય, તમારા જે દીકરાઓ છે, એ દરેકને આ મંત્રનો લાભ થાઓ. જેટલા લોકો બેઠા છે, કોઈ પણ મંત્ર ગણતા, મેં સ્ટાર્ટિંગમાં જ કીધું ભાઈ સંકલ્પ મુદ્રા, કે ભાઈ આ મંત્ર ગણતા 4 જણને લાભ જોઈએ છે, 40 જણને લાભ જોઈએ છે. એ સંકલ્પ કરીને તમે કરો છો તો એ બંને દીકરાઓને પણ મળે છે. તમારા મમ્મી પપ્પા કદાચ માન લો કે મુંબઈની બહાર રહે છે, પણ તમે સંકલ્પ એમના માટે પણ કરેલો છે, તો એમને બેઠા બેઠા પણ ત્યાં એમને એની ઉર્જા પ્રાપ્ત થાય છે. છોકરા કોન્સન્ટ્રેશન ના રાખે, મસ્તી કરતા હોય તો પણ એમાં થોડું થાય ખરા? એના માટે બેન ભક્તામણની 6ઠ્ઠી ગાથાનો અભ્યાસ તમે ચાલુ કરી દો. એનું જે અભિમંત્રિત પાણી છે, ખાસ તમે જૈન અનુષ્ઠાન યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર કાલે જજો, અને કેવી રીતે છોકરાઓનું આ કોન્સન્ટ્રેશન વધે, સ્થિરતા વધે, અભ્યાસમાં સુપર પાવરફુલ થાય. 6 નંબરનું પાણી રોજ પાઠ કરી અને એને પીવડાવો, એટલે ખૂબ એની એકાગ્રતા પણ વધશે. તમે જે બોલી રહ્યા છો એની ભાવધારા ધીમે ધીમે ચાલુ થશે. અને એ સામેથી કહે છે તમે 9:30 વાગે જાપ કરતા હશો, તો 9:25 એ પોતે આવીને બેસી જશે અને કહે છે મમ્મી અમારે પણ જાપ કરવા છે. ભક્તામણનો 6ઠ્ઠો ગાથો 6 નંબર શ્લોક. ઓકે. અને 31 તારીખનું રાશિ ડેટ નું શું છે મંત્ર? એટલે 31st નું નથી બતાવ્યું. ચેનો નથી બતાવ્યું? 4 નંબર રાહુ નેમિનાથ ભગવાન. 4 નંબર અને 31 31 જેનો પણ 31 તારીખે જન્મ થયો હોય એનો ખાસ અંક 4 નંબર બને છે. અને 4 નंबर જેનો પણ बनतो हो वो सभी लोगों को नेमिनाथ भगवान की आराधना करनी है. अच्छा. जय जिनेन्द्र. प्रणाम. जय जिनेन्द्र. ગુરુજી, આપણી પાસે એવો પ્રશ્ન આવ્યો છે કે રાતે સારી ઊંઘ આવવા માટે કોઈ મંત્ર ખરો? રાત્રે સારી ઊંઘ આવવા માટે 24 મિનિટ પહેલા મોબાઈલ ને ટીવી છોડી દેવાનું. રાઈટ. ઓકે. આમાંની 41મી ગાથા ગણશો ને એટલે ખૂબ સરસ ઊંઘ આવી જશે. ઓકે. અચ્છા, અને જેને પ્રશ્ન સાંભળો, જેને પ્રશ્ન પૂછ્યો, જેને તમારે કહેવાનું છે. ઓકે. 24 મિનિટ પહેલા તારે કમસે કમ 3 દિવસ તો છોડવું જ પડશે. આ તમામ પ્રશ્નના જવાબ હું એટલા માટે આપી રહ્યો છું કે હું ઈચ્છું છું કે તમારા બધાની જિંદગીમાં ખૂબ ખુશીઓ વધે, ભગવાન ઓર ધર્મ પ્રત્યેની આસ્થા શ્રદ્ધા વધે, અને તમારા દ્વારા હજારો લોકો સુધી આ ભગવાનનું જે શાસન છે, અણમોલ વાતો છે, એ બધી પહોંચે. એટલે એક એક વાત તો બધાએ ફરજિયાત માનવાની. કદાચ આખી વાતમાં મેં 40-50 વાત તમને કીધી છે, એમાં તમે ઇઝીલી જે કરી શકો એ વાત તમે એપ્લાય કરશો તો ખૂબ 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 તમને લાભ થવાનો છે. એક ક્વેશ્ચન છે નિકુંજભાઈ. નિકુંજભાઈ, મારે પૂછવું હતું કે આપણે મોક્ષ માર્ગની પ્રાપ્તિ માટે પુણ્યની પણ કામના નથી કરવાની, તો પણ આપણાથી થઈ જ જાય છે કે હું દેરાસર જઈશ તો મને પુણ્ય મળશે, હું સામાયિક કરીશ તો પુણ્ય મળશે, ઉપવાસ કરીશ તો પુણ્ય મળશે. તો આપણે એટલે પુણ્યની કામના કરવાની કે નહીં? નહીં કરવાની, બિલકુલ બેન નહીં. એટલે એ જ વાત છે કે પેલું આપણે બધા અત્યારે લગભગ જેટલા લોકો છે ને બધા પહેલા ધોરણમાં, જે એમ કે હું 2 કલાક જાપ કરું છું એ બધા બાલ મંદિરમાં છે. જેટલા પણ લોકો એમ કે હું 2 કલાક જાપ કરું છું એ બધા બાલ મંદિરમાં છે. જેટલા લોકો એમ કે હું 10 મિનિટ ધ્યાન કરું છું એ બધા પહેલા ધોરણમાં છે. કારણ કે કરોડો વખત તમે પૂજા કરો અને એક નવકાર મંત્ર ગણો એટલે પૂજા કરતા નવકાર મંત્રનું ફળ વધી જાય. એવા કરોડો નવકાર ગણો અને 1 મિનિટનું ધ્યાન કરો, વધારે પ્રભાવ ધ્યાનનો છે. એટલે 2 કલાક, 2.5 કલાક, 3 કલાક જેટલા પણ લોકો ધ્યાન કરી રહ્યા, જાપ કરી રહ્યા છે, એ બધાએ 2-2 મિનિટ, 5-5 મિનિટ જે ધ્યાનની અવસ્થા એટલે શાંતિથી બેસી જવાનું. ખાલી તમે જો તેરાપંથી જે સંપ્રદાય જે છે એની અંદર શ્વાસ કેવી રીતે લેવો અને છોડવો એ ખાસ શીખવાડવામાં આવે છે. બધા લોકોને લગભગ લોગસ આવડતો હશે, પણ લોગસ કેવી રીતે બોલાય કોઈને નહીં આવડતું હોય. લોગસ ત્યારે જ તમારો સાચો કહેવાય કે જ્યારે તમે 25 વખત શ્વાસોશ્વાસ લો, શ્વાસ લેવાનો અને છોડવાનો,
અને એટલામાં જો તમારો લોગસ પૂરો થાય તો તમારો લોગસ સાચો, બાકી બધું ખોટો. એટલે આપણા ધર્મમાં ઉપયોગ જે છે ને એ સૌથી પહેલી વસ્તુ છે. એટલે હવે જાપ ઓછા કરીને આપણે બીજા લેવલમાં જવાનું છે. એ ખાલી નમો અરિહંતાણમ બોલો ને ત્યારે અડધી કલાક થાય. નમો અરિહંતાણમ, નમો નો મતલબ એમ છે કે તમને તમારા નોકરમાં પણ નમન દેખાય, તમારા લિફ્ટના વ્યક્તિમાં પણ નમન દેખાય, તમારા કર્મચારીમાં પણ તમને સારા ગુણો દેખાય, તમે કોઈના દોષ જોઈ જ ન શકો. श्री कृष्ण महाराज का दृष्टांत आता है कि इंसान क्यों कैसे महान हो सकता है. तो एक सड़ी हुई कुतरी थी, पूरा गांव उसके ऊपर थूक रहा था, लेकिन वो सड़ी हुई कुतरी के वो पास में जाते हैं और ध्यान से देखते थे कि उसका एक दांत था ना वो चमक रहा था. तो जो आपको खुद को समझना है कि लोगों की बुराइयां मुझे ज्यादा दिख रही है, मतलब अभी मैं बहुत 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 पीछे हूँ. बुराइयां में से अच्छाइयां मुझे ज्यादा दिख रही है तो मैं मोक्ष मार्ग के अंदर आगे हूँ, मैं उत्तम मनुष्य के जीवन में आगे हूँ और आपका मृत्यु भी महोत्सव बन जाएगा. प्रणाम जय जिनेन्द्र, तृप्तिबेन खूब खूब अनुमोदना. બહુ ઘણી બધી આપણે વાતો કરી લીધી છે. હજી પણ કોઈ એકાદ બેના પ્રશ્ન હોય તો પ્રશ્ન લઈને પછી આજનું સેશન આપણે સમાપન કરીશું. આપણે ક્રિયા ધર્મ કરવાનો વધારે કે માનવ ધર્મ વધારે શ્રેષ્ઠ છે? એક મિનિટ, શું કહો છો? હેલો, ક્રિયા ધર્મ વધારે શ્રેષ્ઠ કે માનવ ધર્મ વધારે શ્રેષ્ઠ? માનવ ધર્મમાં ક્રિયા કરવાની આવવાની છે ને બેન. જૈન ધર્મ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. તમે જૈન ધર્મના સૌથી પહેલા એક વસ્તુ સમજી લેવાનું કે પહેલા આપણે કોઈક જગ્યાએ કનેક્શન કરવાનું છે. કનેક્શન યદી તમે બ્રાહ્મણ ધર્મનું કરો છો અને બ્રાહ્મણ થયા પછી જો જૈન ધર્મની ક્રિયા કરો છો તો પણ તમને પાપ લાગે છે, કારણ કે તમે તમારા ધર્મને વફાદાર નથી. તમે માન લો કે એક્ઝામ્પલ તરીકે કોઈ પણ એક ગુરુને નક્કી કરી લીધા અને એ ગુરુ માન લો કે તમે રામચંદ્ર સુરી માસેમનો સમુદાય સ્વીકારી લીધો, પછી ઈ જે કે ઈ તમારા માટે ધર્મ છે. જૈન ધર્મના માન લો કે મુખ્ય નિયમો જે છે એ છોડી અને પછી આપણે માનવતાના માર્ગે આગળ વધી જઈએ અથવા તો એ પ્રકારની ભાષા પણ બોલીએ તો પણ આપણે મહાપાપી બનીએ છીએ. ક્યારેક ગુપ્ત રીતે તમારે કરી દેવું પડે છે, એ આખી અલગ વસ્તુ છે, પણ એનો માર્ગ ક્યારે પણ આપણે ન બનાવાય. એટલે પહેલા ચરણમાં મેં શું કીધું કે ગુરુ ભગવંતને બનાવવાના, વર્ષમાં એક વખત એને જવાનું, એના પુસ્તકો એના પ્રવચનો વાંચવાના અને ક્યારે પણ ધર્મનો ઉપદેશ આપવાનો નહીં. આજના જીવનનું પહેલું શબ્દ તમને કહું છું કે મરીચી ખાલી એક જ વાક્ય એટલું બોલ્યા હતા कि धर्म यहाँ भी है और धर्म उधर भी है. बहुत बार हम मस्ती में या हमको नहीं पता हो तो भी बोल देते हैं, तो एक वाक्य से अगले करोड़ों भव तक आपको जैन धर्म भी नहीं मिलेगा और आप अनंत संसारी बन जाएंगे. तो मेरी सबसे बहुत बहुत विनंती है, मैं भी जो बोलता हूँ 10 बार लिखता हूँ, लिखने के बाद मैं मेरे गुरु मास्टर जी को भेजता हूँ कि भाई मैं ये बोल रहा हूँ बराबर है. गलती से अज्ञान अवस्था में भी हमने हाँ 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 होता है चलता है सब चलेगा, जैन धर्म में तो सब कुछ चल सकता है, तो हम इतने बड़े कर्म के भागी बन जाएंगे. तो इसकी जगह भाई मुझे नहीं पता है, इसके जो ज्ञाता है आप उनको पूछ लीजिए, वहां से आप बच जाओगे. लेकिन हाँ हाँ सब चलता है बोल दिया तो भवांतर में कभी भी आपका अभ्युदय अटक जाएगा. मानव धर्म हमारे 7 धर्म जो 7 क्षेत्र है उसके अंदर अनुकंपा है. जैसे हमारा भगवान का वरघोड़ा निकलता है तो कोई भी गरीब हो, बराबर, वो कोई भी गरीब वस्तुपाल तेजपाल ने सदाव्रत खाते 24 घंटे चले, रात को खास वस्तुपाल तेजपाल शुद्ध श्रावक थे, फिर भी 24 घंटे चले ऐसे सदाव्रत खाते चलाए थे. पर ये सब चीज जाहिर माय पर नहीं बोल सकते. हर चीज के अंदर विनय विवेक मर्यादा गुरु की आज्ञा से वस्तुपाल तेजपाल ने मुस्लिमों की दरगाह के अंदर सोने के छत्र चढ़ाए थे. आदिनाथ भगवान की जो पत्थर के पाषाण लेने के लिए मुस्लिम राजा को प्रसन्न किया था. द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से हम मर्यादा के साथ में गुरु की निश्रा में जब हम आ जाते हैं ना तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है. हाँ अमिताबेन, આપણે બધું પાડતા હોઈએ પણ આપણે ક્યાંય બીજા મંદિરમાં દર્શન કરવા જઈએ તો એ દોષના ભાગીદાર. શેના માટે બેન જવાની જરૂર છે? હા, શેના માટે જવાની જરૂર છે? આપણે ભગવાનનું બહુ સારું સાંભળ્યું હોય કે આ મંદિર બહુ સરસ છે કે ત્યાંના પ્રતિમાજી બહુ સરસ છે, તો આપણા જેટલા પણ જૈન દેરાસરોના આપણા દર્શન બધા દેરાસરોના થઈ જાય, બરાબર, પછી જે જગ્યાએ જવું હોય ત્યાં જવાનું. આપણા ગામમાં જે રહેતા હોય, અમદાવાદમાં કેટલા બધા સિટી વિસ્તારના દેરાસરોના દર્શન આપણા બાકી છે, ત્યાં આપણે જો છોડી દેતા હોય અને જો બીજી જગ્યાએ જતા હોય તો આપણને દોષ લાગે.
ઘણી બધી વખત કુતુલતા વર્ષ જતા હોય, ઘણી બધી વાર દોસ્તારોની સાથે છે, 5 દોસ્તારો છે, તો એ વખતે દોસ્તની ભાવના ખરાબ ન થાય એટલા માટે તમે જાઓ તો ઓકે છે, પણ કુતુલતા પૂર્વક જાઓ તો એવો આપણે સમય બરબાદ કરવાની કોઈ બેન જરૂર નથી. ઓકે, ચલો કોઈ શિલ્પાબેન બરાબર સમજાય છે? એક સવાલ સાહેબ છે. હા બોલો પ્રભુ. તમે કહ્યું ગુરુ મહારાજને તમે ફિક્સ કરો. હવે આપણે ઘણા બધા ગુરુજીના કોન્ટેક્ટમાં આવતા હોઈએ, દરેક ગુરુનું આપણે ગુરુવાણી સાંભળતા હોઈએ, તો એમાંથી આપણે કોઈક ને કોઈક થોડું થોડું ફોલો કરવાનું આવતું હોય તો શું કરવું? આપણે એક જ ગુરુને પ્રભુ શીખવાડો. ડોક્ટરો ઘણા બધા છે, જે ફેમિલી ડોક્ટર આપણે ઘણા બધા રાખીએ છીએ. જેમ કે આપણે અહીંયા અમારો સંઘ નાનો છે, પણ કોઈ પણ મહારાજ સાહેબ આવ્યા, કોઈ પણ એનું વ્યાખ્યાન આપણે સાંભળ્યું, તો જો તમે વ્યાખ્યાનને સાંભળીને પારવાના ના હોય તો વ્યાખ્યાનનો પછી એટેન્ડ કરવાનો મતલબ શું રહેતો? ધર્મ ભાવનાથી આપણે સાંભળીએ છીએ. ગુરુ મહારાજ સાહેબ એમ કે આ કરવા જેવું છે, આ તમે કરો એવું કોઈ દિવસ ન બોલે. ઓકે. ગુરુ ભગવાન શું કહે છે કે ભાઈ રાત્રિ ભોજન છોડવા જેવું છે, દેરાસર જવા જેવું છે, અને ગુરુની પરિભાષા ભાઈ જેને જોવાથી આમ તમારા રોમટા ઉભા થઈ જાય. ગુરુ મહારાજે એમ કીધું કોઈ 12મા માળથી કૂદકો માર અને 1 સેકન્ડમાં પણ તમે વગર વિચારે મારી દો અને મારો તોય તમને કશું ન થાય, એ તમારા સાચા ગુરુ. જેને જોવા મળે, જેને સાંભળવાથી અતિશય આનંદ આવે. જ્યારે આપણે પ્રેમ અવસ્થામાં હોય ત્યારે આપણે આપણી પત્નીને કેટલો બધો પ્રેમ કરતા હોય, એનો એક શબ્દ પણ સાંભળવા મળે, એની સાથે 1 સેકન્ડ તમે વાત કરવા પણ મળે તો આનંદ 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 થાય. એમ એવા ગુરુની ચોઈસ કરવાની છે કે જેની વાણી તમને સાંભળવાથી આનંદ થાય, જે કશું જ બોલે તો પણ તમે સ્વીકાર ભાવથી થઈ લો. પ્રવચન તો આપણે બધાના સાંભળવા. સારી વસ્તુ, મેં જેમ કૂતરીનું શું કીધું કે સારી વસ્તુ નાના છોકરા પાસેથી પણ આપણને શીખવા મળે છે, તો એ આપણે લઈ લેવાની છે. ઓકે, થેન્ક યુ. અવનીબેન શાહ પૂછવા માંગે છે એક ક્વેશ્ચન. અવનીબેન શાહ. શિલ્પાબેન એક જ મિનિટ, ભવરભાઈ બોલીએ. હા भंवर बोलिए जी। डॉक्टर हेलो सर, नॉर्थ ईस्ट में मेरा टॉयलेट है तो उसके लिए क्या समस्या, उसके लिए क्या निवारण है? ये पर्सनल जो है, आप जो भी सिटी में रहते हो ना, वहां पर जो भी जिसके ऊपर आप बिलीव करते हो वो अच्छे वास्तु शास्त्री को बुला करके वो निकालना ही है. नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम कभी भी चल सकेगा नहीं. कोई भी बोले कि वायर लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, नॉर्थ ईस्ट वाला जो है वो लंबे समय में कैंसर आने वाला ही है. मान लो 2-5 लाख अभी मकान खाली करना, वो घर में अपने को नहीं रहे. ठीक, ओके सर. गुरुजी. हाँ जी बोलो. હા, નાનપણથી નસ્મરણ, ઋષિ મંડળ બધું શીખેલું હોય ગુરુ પાસે, તે કાયમ ગણતા રહીએ તો એ શું કહેવાય, પાછું ગુરુગમ કરવાનું કહેવાય કે આમ કન્ટિન્યુ ગણતા રહીએ તો ચાલે? તો તમે ગુરુ માસ્ટર પાસે બેન લીધું છે એટલે કરવાનું, એની આગળ સંકલ્પ જોઈન કરી દેવાનો. હા, એની અચ્છા સંકલ્પ ને આ ભવ આલોચના લીધી છે, સ્વાધ્યાયથી કરું છું તો એમાં બી સંકલ્પ લેવાનો. શેના માટે? રોજે 4 પ્રકરણ, 4 ભવ આલોચના લીધેલી ગુરુ મહારાજ પાસે. બરાબર. એમાં પણ સંકલ્પ લેવાનો પહેલા. હા, એ બધા માટે પહેલો સંકલ્પ બેન ભવ આલોચના પણ તમે કર્મ નિર્જરા માટે લીધી છે, અને કર્મ નિર્જરા પછી પણ આપણે મોક્ષમાં જવાનું છે. બરાબર, એટલે પહેલો સંકલ્પ તો બોલવાનો જ છે આપણે. રોજે સ્મરણ કરીએ ને બધું ઋષિ મંડળ ને ઘણું સક્રસ્ત ને બધું ઘણું, તેમાં બધું ગુરુ મહારાજ પાસે શીખેલું છે ને ત્યાંથી ચાલુ જ છે ગણવાનું. તો જે સંકલ્પ લેવાનો એટલો જ મારો ફરક નથી. બહુ સરસ બેન, જે કરી રહ્યા છો બહુ સારી વાત છે. હવે મેં તમને કીધું બાલ મંદિર માંથી પહેલા ધોરણમાં આવો, ધ્યાન તરફ આપણે આગળ વધીએ. બરાબર, સારું, ચલો હવે અંતિમ 3 દિવસ બધા લોકો લખી નાખો. હજી કોઈને ક્વેશ્ચન? હવે સપના આપણે શિલ્પાબેન અંતિમ. હા બોલો. એક ક્વેશ્ચન હતો કે આપણે ડોનેશન લખાવીએ છીએ ક્યાંય પણ મંદિરોમાં કે ક્યાંય બી કોઈ બી જગ્યાએ, તો એમાં આપણે નામ લખાવીએ, કોઈ એમ લખાવે એક સદગ્રસ્ત તરફથી, તો બેમાં ડિફરન્સ શું છે કે કયું સારું, નામ લખાવવું સારું કે સદગ્રસ્ત તરફથી? તમારે શાસ્ત્રમાં એવું બેન કીધું છે કે તમે જમણા હાથે દાન આપો ને તો ડાબા હાથને ખબર ન પડવી જોઈએ. સમજી ગયા આટલી વાતમાં બધું? કોઈ પણ જગ્યાએ નામનાની કામના આવે
એટલે સમજી લેવાનું કે ખાસ કરીને બુદ્ધિસાગર સુરી મા સાહેબજી અને એમના પણ અત્યારે વર્તમાનમાં આખા તપા ગચ્છાધિપતિ જે મનોહર કીર્તિ સાગર સુરી મહારાજ સાહેબ છે, એમના ઘણા બધા મેં પૂજનો ભણાયા અને ખાસ પ્રવચનમાં કહેતા હતા કે જેને પણ નામનાની કામના હોય ને એ માણસ બીજા ભવમાં મરીને હાથી થાય. આખા બ્રહ્માંડમાં સૌથી લાંબુ નાક કોનું હોય? સૌથી લાંબુ નાક કોનું હોય? હાથીનું. તો ભાઈ નામ શેના માટે? ભાઈ મારું નામ થાય, 10 લોકો આવશે, જોશે, સાંભળશે, અનુમોદના કરશે, તો એની જે પુણ્યની પરંપરા જે શરૂ થવાની છે એ તમારી ગતિ ત્યાં રૂકી જાય છે. અને બીજા નંબરમાં ચડાવો તમે લો છો એટલે ઓન ધ સ્પોટ એક દિવસ પણ નહીં કરવાનો. આપણે હંમેશા એટલા જ ચડાવવા લેવાના કે જે આપણે ઓન ધ સ્પોટ પૈસા ભરી શકીએ. તમે જેટલું પણ લેટ ભરો છો તો એટલા તમે કર્જના ભાગી બનો છો. એટલે એવું પણ આપણે નહીં કરવું. બહુ સરસ. તમારા બધા ગ્રુપ સાથે મળીને નલિનભાઈ બહુ એટલે બહુ આનંદ આવેલો છે. આ લોકડાઉન ની અંદર આવા વિષમ પરિસ્થિતિમાં આપ જેવા બધા મહાપુરુષો, શિલ્પાબેન, પ્રકાશભાઈ, તોરલબેન, અમિતાબેન, સર્વ વ્યક્તિઓના દર્શન વંદન કરી બધા ખૂબ મંગલ થાઓ, ખૂબ કલ્યાણ કરો. ખાસ કરીને 5 તારીખે ગુરુ આપણે પૂર્ણિમા છે. પૂર્ણિમાના દિવસે સામૂહિક પદ્માવતી મહાપૂજનનું એક ભવ્ય આયોજન 1008 ઓલ ઓવર વર્લ્ડ થી જોડાવાના છે. રજીસ્ટ્રેશન ચાલુ થઈ ગયું છે. સાંજે 4 થી 5:30 જેના પણ ઘરે પદ્માવતી માતા હોય તો પદ્માવતી માતાના એક અદ્ભુત મહામંત્રો હું અહીંથી તમને સંભળાવીશ. પદ્માવતી માતાનું મેડિટેશન, પદ્માવતી માતાની ચાલીસા. તો કરીબન 1.5 કલાકનો આ 5 તારીખે કાર્યક્રમ છે. જે પણ જોડાવા માંગતા હોય તો જૈન અનુષ્ઠાન ફેસબુક ઉપર અને ઝૂમ ની લિંક થી જોડાવાનું. તમારે પદ્માવતી માતાનો ફોટો કે પ્રતિમા અને થોડાક ચોખા, દીવો, ધૂપ લઈને ઘરે બેસવાનું છે. આ બધા અનુષ્ઠાનમાં ખાસ આપણે જોડાશું. 5 તારીખે રાત્રે ચંદ્ર ગ્રહણ છે. તો ખાસ કરીને ચંદ્ર ગ્રહણના દિવસોની અંદર ગ્રહણ યોગ છે. સૂર્ય સાથે કેતુ છે, રાહુ છે, ગ્રહણ દોષ કોઈ પણ પ્રકારના, બુધ સાથે, 9 ગ્રહો સાથે રાહુ કેતુ કોઈ પણ છે. તો એ ગ્રહણ યોગનું તમે નિવારણ કરવા માંગતા હોય તો ખાસ મંત્ર જાપ, મેડિટેશન, ધ્યાન કરવાનું છે. 21મી જે જૂન છે અને 5મી જુલાઈ, ટોટલ આ 1 મહિનાની અંદર આ 3 ગ્રહણ આવી રહ્યા છે. તેનો પણ વધુમાં વધુ આરાધના, ધ્યાન, સાધના દ્વારા તમે બધા ઉપયોગ કરો. પરમ મંગલ કરો, પરમ કલ્યાણ કરો. ઈશ્વરીય શક્તિ સાથે ખૂબ જોડાઓ અને નજીકના ભવિષ્યમાં તમારા સર્વ સપનાઓ ભગવાનની ભક્તિ કરતા દ્વારા, નિર્મળતા દ્વારા, સાથે ભક્તામનની આરાધના કરતા પૂર્ણ થાય એવી વંદના સાથે, નમન સાથે, નયા વિષયો સાથે વાપસ હાજર થઈશું. કાલે સવારે 10:30 વાગે એક જબરદસ્ત જૈન અનુષ્ઠાન ફેસબુક પેજ ઉપર ટોક શો રાખેલો છે. તેમાં 6 વિશિષ્ટ કોટીની વ્યક્તિઓ વાર્તાલાપ કરશે, મણિભદ્રજીની વિશિષ્ટ આરાધના કરાવશે. રેકી હિલિંગ શું છે, ભક્તામર હિલિંગ શું છે, એની બધી ચર્ચાઓ કરશું. તો બરાબર 10:30 થી 11:30 જો તમારી પાસે ટાઈમ હોય, પહેલા ચરણમાં આજે જેવો કાર્યક્રમ ખતમ થાય એટલે ફેસબુક ઉપર જૈન અનુષ્ઠાન યુટ્યુબ અને फेसबुक पेज बनने लाइक करें, रजिस्टर થઈ જવાનું છે, जिसके कारण आगे हमारे जितने भी कार्यक्रम होंगे वो आपके पास आते रहेंगे। 2 पुस्तिका, 1 पैम्पलेट है 4 पेज का और 1 भक्तामर की पुस्तिका अभी मैं शिल्पा बहन को भेज दूंगा, जो आप सभी के पास सारे उसमें मंत्र है, विधि है, ध्यान है, संकल्प है, वो सारे आप आपके जीवन के अंदर उपयोग कर पाएंगे। तो पीडीएफ सभी लोग अपने अपने मोबाइल में रखें, जब भी खुले तब आपको उसका प्रिंट निकाल लेना है। अब ध्यान की शुरुआत आप कैसे करेंगे? तो हफ्ते में एक बार आप 30-35 मिनट का टाइम निकालें। एक अद्भुत जो भक्तामर स्तोत्र है आपको मोबाइल में चालू करके बैठ जाना है, आंख बंद करते, उसके अंदर जो वायोलिन है, उसमें जो फ्लूट है, ऐसे अद्भुत हमने संगीत का हमारे जो 7 चक्रा है उनके मुताबिक स्पेशल रागों के अंदर वो स्तोत्र को हमने तैयार करवाया है। और इतना आप सभी को अनुभूत होगी तो पूरा भक्तामर स्तोत्र भी अभी थोड़ी देर में मैं शिल्पा जी को भेज दूंगा, तो वो आप सभी को पूर्ण रूप से फ्री ऑफ चार्ज मिल जाएगा। तो उसका खूब अभ्यास कीजिए। कहीं पर आप अटकते हो, कहीं पर आप रुकते हो तो जरूर आप हमारी संस्था का व्यक्तिगत रूप से हमारा संपर्क करें। 51 दिन का एक बहुत बड़ा महामहोत्सव भक्तामर चातुर्मास हम लोग कराने जा रहे हैं। रोज एक थेरापी के ऊपर हम सभी को पढ़ाएंगे, पूरे विश्व भर के सभी लोग उसमें पढ़ेंगे। तो जैन अनुष्ठान अभी से आप रजिस्टर कर लें। गुरु पूर्णिमा से आषाढ़ सुधी पूर्णिमा से संवत्सरी तक ये पूरा आयोजन भव्य मिलेगा। उसमें कुछ न कुछ रूप से हम आप सभी की सेवा करने का अवसर मिले। आपके पास कोई विशिष्टतम शक्तियां है, ज्ञान है, तो आदान और प्रदान, मैं भी एक संसारी जीव हूँ, तो मेरे पास भी आपके पास भी जो कुछ भी है हम बेहतर परिवार बनाए, खुशी को पाए,
यही भावना के साथ एक अंतिम प्रार्थना आप सभी को मैं बुलाता हूँ और उसके बाद आज के कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। टट्टार बराबर बैठ जाइए, आंखें बंद करते हुए। हाँ, આપણે એક સુરક્ષા કવચનું તમે જરા સમજાવી દેજો ને, એ પણ કહી દેજો। एक यंत्र भी मैं आप सभी को देने वाला हूँ, वो यंत्र भी अभी आपके पास आ जाएगा। वो यंत्र की 2 प्रिंट, जिसके घर में प्रिंटर है वो 2 प्रिंट खास निकाल ले, और जिसके प्रिंटर है वो 25-50 निकाल के आसपास सभी को बांटे। ये वेर का वमणमा बहुत हमारे जैन धर्म का सबसे मंत्र शास्त्र का प्राचीन पुस्तक है, उनका ये यंत्र है जो आपको दरवाजे के पीछे, घर का मुख्य दरवाजा जो है उसके पीछे लगाना है, और एक यंत्र की बराबर प्रिंट निकाल करके उसको लेमिनेशन करा के या नॉर्मल प्रिंट आपको ऊपर 15-20 मिनट पानी का कांच का ग्लास रख करके वही पानी दिन में एक बार सभी को पीना है। बहुत प्रभावशाली ये यंत्र है, हजारों लोगों के घर में पहुंच चुका है, और अभी आपके पास भी जो शिल्पा जी वो भेज देंगे। तो पार्श्वनाथ परमात्मा का वर्तमान समय की महामारी के लिए अभी जैसे लॉकडाउन तो कल से परसों से खुल जाएगा बहुत सारी जगह के ऊपर, पर हम सुरक्षित रहे, ये यंत्र जिसके भी पास है वो सभी लोग सुरक्षित रहे, अंत के अंदर पूरा विश्व सुरक्षित रहे, इसी भावना से आचार्य भगवंतों के पास से हमारे पास आया है और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। खूब खूब अनुमोदना। प्रणाम जय जिनेन्द्र। चलो आंखें बंद करके बराबर टट्टार बैठ जाइए। यूनिवर्सल में से धीरे 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 सारी दिव्य शक्तियां सहस्त्रार चक्र में से प्रवेश करते हुए आज से अपूर्व कोटि का महामंगलकारी जीवन यात्रा का प्रारंभ होने जा रहा है। नई चेतना, नई ऊर्जा आपको एक अद्भुत कोटि का आनंद कराए, अद्भुत कोटि की ऊर्जा लाए, हर काम के अंदर आप सामर्थ्यवान बने, शक्तिवान बने, ऊर्जावान बने, खुशवान बने, इसी भावना के साथ जो विषय में आप सभी को बुला रहा हूँ, बोलते बोलते आनंद के साथ झूमते हुए, नाचते हुए, भक्ति करते हुए सब लोग बोलेंगे। मैं जैसे बोलाऊंगा वही आपको रिपीट करना है। अरिहंत सहारा मेरा है, बोलो अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है, सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है, जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है। भगवान की अनन्य कृपा खूब बरसे, खूब मस्त रहो, खूब खुश रहो। और इसी का पहला चमत्कार 11 कैसे बज गए अभी भी पता चला नहीं है, कैसे समय बीतता जा रहा है। जबरदस्त कोटि का आनंद, मंगल, प्रार्थना, वंदना के साथ 5वीं तारीख की सभी को आमंत्रण तोरल जी दे दीजिए।
યસ ને તમે આપી દો ગુરુજી. તોરલ તમે નહીં ભાભી તમે આપી દો વાંધો. અનુમોદના તોરલ ના તું આપ તારા તું કર. 5મી તારીખે ઝાલાવાડી અને જૈન સોશિયલ ગ્રુપનું બધાએ ઝૂમ પર આવી જજો. લિંક શિલ્પા ભાભીને મોકલી દઈશ અને ત્યાં આગળ પદ્માવતી દેવી માતાનું પૂજનનું છે તો બધાને ઇન્વાઇટ કરી રહ્યા છીએ અમે લોકો. સીવી સર સાથે બધા પધારજો. તોરલબેને આપણને જૈન સોશિયલ ગ્રુપ જૂ બીચ તરફથી બધાને આમંત્રણ આપ્યું છે. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. થેન્ક યુ વેરી મચ. પ્રણામ. અમદાવાદ ક્યારે પણ આવો બધાએ. ખાસ અમારી અમદાવાદમાં સેન્ટર છે, બધાએ ખાસ મુલાકાત લેવાની છે. ધર્મના નાતે આજે આપણા બધાનો સંબંધ થયો છે. ચોક્કસ. નિકુંજજી મારા આપણે ગુરુજી તમારે અહીંયા જ્યારે મુંબઈમાં પધારો ત્યારે તમારું હવે અમારે લાઈવ લેક્ચર હવે અમારે સાંભળવાનું છે. આજે બીજું ઇન્વિટેશન મળ્યું. હા, મુંબઈની અંદર 15 દિવસનો કાર્યક્રમ લઈને અમે આવી રહ્યા છીએ. પુકારી મંડળ, બોરીવલી, મલાડ, એક તમારું વાલકેશ્વરથી પણ બહુ વિનંતીઓ છે. તો ખૂબ બધા મુલુંડના જિજ્ઞાબેન પણ શનિવારે એક આયોજન કરાવી રહ્યા છે ખૂબ ભવ્ય રીતે મુલુંડની અંદર પણ. તો બધા સાથે મળી એક અપૂર્વ કોટીની આનંદ ખુશી બધા પ્રાપ્ત કરી એવી સરળતા સાથે, નિર્મલતા સાથે તમારા બધાના આશીર્વાદ પણ મને મળતા રહે કે ખૂબ મારા દ્વારા જૈન શાસનની સેવા થાય એ ભાવ સાથે જેના કંઈ પણ બોલાયું હોય મન વચન કાય કરી મિચ્છામિ દુક્કડમ વિઘ્નવલ્લય મનઃ પ્રસન્નતામેતિ પૂજ્યમાને જનેશ્વરે સર્વ મંગલ માંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વ ધર્માણમ જય શાસન દેવકી જય. બધા જ મેમ્બરોનો હું ધન્યવાદ કરું છું. બધાએ ખૂબ સરસ રીતે આપણું આજનું નિકુંજભાઈનું પ્રવચન સાંભળ્યું એની માટે બધાને ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કરું છું. થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. પ્રણામ.